Hello and welcome to yet another episode of Coach I Need Help. Hi, I'm Manish Ahuja and the person on the other side of the screen smiling without a notification today is Pankaj Agarwal. Yes. Pankaj and I come together to create a deep dive episode on multiple topics associated with the coaching industry, consulting industry, basically any sort of a digital business. If you're a marketing agency or if you're a content creator, you're going to get a lot of value by watching all of our episodes. Today, we are going to talk about one of the very strong burning problems of digital business owners, which is how do you actually convert a sale? Now, what is happening nowadays is people are running ads, and while they are running ads, they're getting leads, but they are never sure if the quality of leads is good. They are not sure if why is the webinar turnout ratio so low, which means if let's say if you're getting 100 leads, why are you getting only about 20, 15, 10 people in the webinar room? How do you expand the number of people who actually end up attending your webinar? Because more people attending your webinar is equals to more people getting to know about your brand, your product, your services, your offer, etc., etc. More people getting to know about your offer is equals to more people, they are more likely to buy from you. So how do you actually fix this entire situation? More than how do you fix it, you also identify why is this problem existing in the first place. To discuss about all of this and a lot more, how do you solve this, what are the tips and tricks that we have, what is that one tool which has helped both Pankaj and I and Pankaj's clients to increase the webinar turnout ratio, sales ratio, is what we are going to discuss in today's episode. So a very warm welcome to all of you and welcome to Pankaj as well. Pankaj, have I given a proper introduction? Have I forgotten anything? Have I missed anything? नहीं, I think you have covered it nicely. So I think the problem वही होता है कि लोग बोलते हैं वेबिनार खराब है, वेबिनार वर्क नहीं करता है, एंड फिर उनको पता नहीं रहता फिक्स करे तो करे कैसे। वो बोलते कि हम तो 10 बार कर लिए वेबिनार, 6 महीना हो गया वेबिनार करते करते, बट वेबिनार 6 महीना से नहीं चल रहा है, इसका मतलब वेबिनार नहीं चलेगा। बट मैंने कहा कि फिर फिक्स कैसे करना है, तो फिर मैं बोलता हूँ लोगों को कि कॉल कर लो, लोगों को पता करो। अटेंड तो किया ही था ना, अगर 100 लोग वेबिनार रजिस्टर किया था, 100 में से कम 30 लोग तो लास्ट तक रुके होंगे, आपका ऑफर सुन रहे होंगे, तो बोलता है क्लाइंट बोलेगा हाँ सुन रहे थे, तो बोले उनको कॉल कर लो। तो फिर वो लोग बोलते कॉल करने का टाइम नहीं मिलता है, तो कॉल करूँ कैसे? तो वो अलग इश्यू हो जाता है, वो हम लोग पहले डिस्कस किया। आप कॉल कोई करेगा ही नहीं तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब कब कॉल करना चाहिए, वेबिनार के पहले करना चाहिए, वेबिनार के बाद करना चाहिए कॉल, और कॉल करे तो क्या करे कॉल। क्योंकि इनफैक्ट कॉल करना हम मेरे लिए बहुत इजी लगता है कि चलो कॉल कर लेंगे, बट बहुत बार हुआ मेरे साथ, मल्टीपल क्लाइंट्स का रिकॉर्डिंग कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिला सुनने का कॉल का, तो मुझे पता चला नहीं, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रहे कि पूछ रहे उससे कि ठीक है, आपको वेबिनार मेरा क्यों अच्छा नहीं लगा। एक लाइन पूछे फिर अच्छा नहीं लगा, ठीक खत्म हो गया, चलो ठीक है थैंक यू फॉर दिस। मतलब कॉल पूरा जैसे होना चाहिए उस तरह से होता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए, ताकि अभी तक हम लोग सभी कुछ कवर कर चुके हैं, वेबिनार चलाना है कैसे, कैसे नहीं चलाना है, बहुत सारे चीज कवर कर चुके हैं पिछले 20 एपिसोड्स में। बट अब इस स्टेज पे लोगों का, अगर सब फॉलो कर रहे होंगे तो हम लोग मान के चल रहे हैं इस स्टेज पे लोगों का वेबिनार लॉन्च हो चुका है, वेबिनार करेक्ट। कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं लोगों को। बट आज एपिसोड वही लोग देख रहे होंगे जिनका सेल नहीं हो रहा है, पहला वेबिनार, दूसरा वेबिनार, या फिर हो सकता है 4-5 वेबिनार कर लिए, सेल नहीं हो रहा है। तो उनके लिए ये एपिसोड खास है। और जिनका ऑलरेडी हो रहा है, ऑफ कोर्स वो लोग ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सेल का क्वांटिटी और ये कन्वर्जन रेट ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आपका ऑलरेडी सेल हो रहा है तो तब भी ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो चालू करने से पहले, क्योंकि हम अपने चैनल में वीडियो बना रहे हैं इसलिए ये लाइन यूज कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए और अपना फीडबैक देते रहिए, और लाइक करना ना भूले। थैंक यू। और क्या बोलते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। हाँ जी, परफेक्ट। ठीक है, तो तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पंकज मुझे बताइए आप अपने हिसाब से, सबसे पहली बात, आज की तारीख में अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और पूछता है हम्म। कि पंकज मैंने ऐड चला लिया, मुझे 100 लीड्स आ गए, हम्म। मेरा वेबिनार मैंने कंडक्ट कर लिया, लेकिन उस 100 लीड्स में से सिर्फ 20 लोग या 15 लोग या 10 लोग, 20 लोग समझ लो, हम्म। मेरे वेबिनार में एक्चुअली आके वेबिनार अटेंड किया, तो हम्म। 20% का कन्वर्जन टर्न अप रेशियो हो गया। ठीक है। आपके हिसाब से एक अच्छे वेबिनार का टर्न अप रेशियो क्या होना चाहिए, एक अच्छे ब्रांड का?
ठीक है, मतलब इतना ही रहता है, अगर 20 से 40-50% के बीच में रहता है हाँ, तो तो 20 मतलब बेयर मिनिमम हुआ, बेर राइट? मिनिमम हो गया कि उतना तो होना ही होना चाहिए। हाँ। उतना हो रहा है तो मतलब आप कुछ तो सही कर रहे हैं, मतलब बहुत बेस्ट नहीं कर रहे वो नहीं बोलेंगे, बट कुछ चालू कर दियो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कंटिन्यू करिए उसको। करेक्ट। अब उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, उसको 40-50-55% तक कैसे ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स ओके। फ्री वेबिनार है तो 100% कहना ही गलत होता है। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि कल ही मेरी एक क्लाइंट से, क्लाइंट नहीं है वो, प्रोस्पेक्ट थी, सेल्स कॉल था, तो वो हम्म। बात कर रहे थे कि उनका प्रॉब्लम बताए कि 150 लोग रजिस्टर करता है वेबिनार में, 70 लोग आए हैं सिर्फ। अरे बाप तो रे, इतना बोले कि खराब रेशियो! हाँ, सिर्फ तो बोले पचास कि परसेंट लोग? हाँ, तो बोले ये फ्री वेबिनार इसीलिए मुझे पसंद नहीं है कि लोग आते ही नहीं है। तो हम बोले कि फिर तो हम इसमें हेल्प नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हम बोलते हैं 30% है, 30-35%। आपके केस में 50% आ रहा था उसके केस में। तो बोले ये तो आपको ऑलरेडी अच्छा है, अब और क्या चाहिए? फिर हम्म। कन्वर्जन के लिए भी उनका वो होता है कि 10-15% ही लोग कन्वर्ट होते हैं। तो बोले अरे वाह, तो आप मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो दिक्कत क्या है? तो फिर वो बोले कि नहीं, मुझे यस। पेड वेबिनार में जाना है, मुझे चाहिए कि 100 का 100% लोग अटेंड करें। तो उस पेड में भी सिचुएशन, कहाँ 100% अटेंडेंस होता है? हाँ, 70-80? 70-80 होता है। फिर हम हाँ। उनको मैथ समझाए बैठ के, फिर कि अपना वीडियो भी था वो भी भेजे बाद में, कि पेड वेबिनार में भले अटेंडेंस आपका ज्यादा हो जाता है बट एट द एंड मैथ सेम बन जाता है, क्योंकि हम्म। आपके पास कॉस्ट ज्यादा जाता है। जहाँ यहाँ पे आप 50 रुपीज में एक लीड ला पाते हो एजुकेशनल वेबिनार के लिए आज के डेट में, वहां पे आप जाके लाओगे तो कम से कम 500, 600, 700 रुपये आता है, तो वो बनता नहीं है। बट ठीक है, हम वापस आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि हम लोग अटेंडेंस को बढ़ाए कैसे। अगर स्टार्टिंग में 20% आ रहा है तो हाँ, मतलब आपका लीड क्वालिटी तो चलो ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि 100 में से 5 लोग आते हैं, 6 लोग आते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो अगर वैसा है तो आप मान के ये चल सकते हो कि देखिए पहले क्या होता है, प्रोसेस आप समझिए कि प्रोसेस क्या होता है। पहले तो लोग ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद साइन अप पेज पे जाता है, और वहां से हम लोग जनरली उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं। तो बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं, बहुत लोग नहीं भेजते, वो सिर्फ ईमेल से नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि ये आपका वेबिनार है, और लास्ट वाले दिन आपको जूम लिंक मिल जाएगा, या फिर उसी दिन जूम लिंक भेज देते हैं। तो अगर सिर्फ वैसा कर रहे हो तो 15-20% इज इनफ, मतलब उससे ज्यादा नहीं आना है। तो बढ़ाने के लिए आपको सेकेंड स्टेप करना होगा कि थैंक यू पेज पे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाल दीजिए, करेक्ट। ताकि लोगों को आप व्हाट्सएप ग्रुप पे बुलाओ। और व्हाट्सएप ग्रुप पे बुलाने का फायदा होगा कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं वहां पे, और कंटिन्यूस उसको रिमाइंडर दे सकते हो, टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो, इंटरेक्शन एंगेजमेंट वगैरह बढ़ा सकते हो। करेक्ट। तो ये कर लेते हैं तो आपका 30% तक आ जाता है। हम्म। अब इसको और बढ़ाना है तो आपको पर्सनली उनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना पड़ेगा एक एक पार्टिसिपेंट को। तो एक हम्म। एक पार्टिसिपेंट को तो आप खुद से भेज नहीं सकते, तो उसी का सोल्यूशन आता है आजकल, व्हाट्सएप एपीआई का टूल आता है बहुत, जैसे कि वॉटी हो गया। और आप कौन सा यूज करते हैं कुछ? मैं एआई सेंसी यूज कर रहा था। यस यस, एआई सेंसी। बात करेंगे, मतलब मैं ये जो भी आप बता रहे हो, मैं पर्सनली इसके बारे में एक एक करके बताने वाला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है पेचेक टू प्रॉफिट में। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो हम्म। फिर अगर आप व्हाट्सएप एपीआई वगैरह लगा देते हो वहां पे, तो उससे क्या होता है, पर्सनल रिमाइंडर जाते रहता है एक एक जन को, जैसे ही कोई करेक्ट। रजिस्टर करता है उनके पास जा रहा है। करेक्ट। तो वो अटेंडेंस परसेंट बढ़ के 30 से 50 तक जा सकता है ये व्हाट्सएप करेक्ट। रिमाइंडर से। और 50% बहुत ज्यादा होता है, मतलब उतना आ गया तो मतलब अपने फेवरेट भगवान जो भी है, आप उनसे प्रणाम करिए रोज की, अरे बहुत अच्छा अटेंडेंस रेट आ रहा है। तो एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया वो चीज। अब उसके अलावा भी होता है कि आप ये सब तो कर रहे हो, जितना जगह से रिमाइंडर भेज रहे हो, व्हाट्सएप से भेज रहे हो, ईमेल से भेज रहे हो, कंटिन्यूअसली अलग अलग तरीका से भेज रहे हो। उसके अलावा एक क्लाइंट मेरी थी जो ये चीज करती थी, मैं उन्हीं से ये चीज सीखा था। वो भी आप ही के निश में थी, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, मनी माइंडसेट नहीं था उनका, उनका डायरेक्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड था। तो उनका क्या था कि 70% तक जाता था अटेंडेंस। तो हम बोले अरे ये क्या मजाक चल रहा है, फ्री वेबिनार में इतना इतना क्यों जा रहा है? तो बाद में मुझे थोड़ा 1-2 सप्ताह काम करने के बाद उनका डिटेल समझ में आया कि क्या हो रहा है। उनका टीम हर लोगों को पर्सनली वेलकम कॉल करता है, जैसे ही कोई रजिस्टर किया इमिडिएटली कॉल करेगा उसको कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, और अपना सवाल जवाब करेगा, फीडबैक लेगा जो भी है। एक पहला कॉल वहां जाता था,
जिस दिन वेबिनार है उस दिन मैनुअली फिर से कॉल करता था, हाय मिस्टर पंकज, आई होप आप अटेंड करने वाले हो शाम को। तो अब इतना पोलाइटली आप 2 बार कॉल कर दोगे उसको, जहाँ पे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड कंपनीज का कॉल आ रहा है और गलती से कोई आपका कॉल उठा लिया पर्सनल नंबर से, तो खुश हो जाएगा कि अरे वाह, ये तो पर्सनली कॉल करके रिमाइंड कर रहा है एकदम बढ़िया से, नो ऑटोमेटेड कॉल ये सब। तो उसके वजह से उनका अटेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो उनके वेबिनार में लोग कम आते थे। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि 1000-2000 लोगों को डेली कॉल करते थे, लोग कम रहता था, लिमिटेड लोग रहता था, लेकिन उसी लीड को वो लोग क्वालिटी लीड बना देते थे। करेक्ट। लोग बोलते थे कि लीड क्वालिटी लीड होता नहीं है, मैक्सिमम लोग आप हमेशा सबसे सुने होंगे, बट वो लीड को वो क्वालिटी लीड बना देते थे इतनी बार कॉल कर कर कर। ये टोटल मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप कुछ ऐड कर सकते हैं इनकेस कुछ मिस किया हम तो। हाँ, मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप अब आज के एपिसोड को यहीं पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि पंकज ने आपको पूरा एपिसोड दे दिया। हम यही चीजों के बारे में अभी इन डेप्थ बात करने वाले, मजाक कर हाँ। रहा हूँ। द आइडिया इज, पंकज ने आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे दिया है कि ये सारी चीजें कर सकते हो आप टू इम्प्रूव योर सेल्स। सी, फाइनली इट्स योर बिजनेस, इट्स योर लीड, इट्स योर मनी ऑन द ब्लॉक. So everything that you can do to improve and increase your sale is your responsibility. Webinar is just a mechanism. That's like saying एक particular store मॉल में काम नहीं करता है और मार्केट में ज्यादा काम करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर स्टोर को अपनी अपनी मेहनत करनी पड़ती है, हर रेस्टोरेंट को अपनी अपनी मेहनत करनी पड़ती है, हर एजेंसी को अपने हिसाब से पिच करना पड़ता है, हर कोच को अपनी हर लीड को वार्म करना पड़ता है। तो हर एक इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है बिजनेस में। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। हाउएवर, हार्ड वर्क करने का जो तरीका है वो आपके डिजिटल बिजनेस में बहुत इजी भी हो सकता है, बहुत स्मार्ट हो सकता है, बहुत क्विक हो सकता है। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट ऑल द ऑप्शंस दैट यू हैव टू फिक्स योर लो वेबिनार कन्वर्जन शो अप, वेबिनार शो अप। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम इस एपिसोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक, अपने वेबिनार में शो अप कैसे बढ़ाएं, और दूसरा, शो अप होने के बाद जो भी आपके वेबिनार को अटेंड करता है, अगर उसमें कन्वर्जन रेशियो लो है तो उसको कैसे बढ़ाएं। तो 2 लिवर्स हैं। हम पहले लिवर पे बात कर रहे हैं कि वेबिनार शो अप कैसे बढ़ाएं। तो जैसे पंकज ने आपको बताया, आप एक अच्छा साइन अप पेज या लैंडिंग पेज डिजाइन कीजिए। उसका हम पहले भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स वाले एपिसोड में बात कर चुके हैं कि उसमें भी कितने सारे फैक्टर्स हैं। आपका एड अच्छा होना चाहिए, कॉपी अच्छा होना चाहिए, आपका वीडियो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपका पेन पॉइंट अच्छे से आप फोकस करना चाहिए। पीपल व्हेन दे कम टू योर लैंडिंग पेज, दे शुड सी अ वेरी वेल डिजाइन लैंडिंग पेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दे शुड साइन अप। सब चीजें आपकी जगह पे होनी चाहिए। बट लेट्स से understand one simple thing, and I genuinely believe this: if somebody has taken the time and the effort to see your ad, click on your ad, come to your landing page, click on one more button to open the sign up form, given their name, email address, and has hit on the register button, they are they are an interesting, or they are an interested lead. I will not say it's a warm or a hot lead. They are an interested lead. The moment somebody is interested, it is your job to convert them from being interested to warm to hot to a person who is inquisitive to buy to a customer to a lifelong customer. ये आपका काम है। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ लीड टू अ हॉट लीड और अ वार्म लीड टू, सो दैट दे आर मोस्ट प्रोबेबल टू बाय फ्रॉम यू। ठीक है। सो जैसे पंकज ने बताया, सपोज अब आप मेरे लैंडिंग पेज पे आए, आपने देखा मेरा वेबिनार है, मैं मनी माइंडसेट के बारे में बात करूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूंगा, मनी ब्लॉक्स के बारे में बात करूंगा। आपको अलग अलग लोगों के टेस्टिमोनियल्स दिख गए, आपको दिख रहा है कि मैंने ये वेबिनार पहले 50, 100, 200 बार किया हुआ है, दूसरे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये वेबिनार से उनको इतने वैल्यू मिली, मैंने एक अच्छा लैंडिंग पेज बना दिया। आपने रजिस्टर किया। आप जब थैंक यू पेज पे आते हो, आपका सिर्फ लोगों से ईमेल लेना आपका नीड नहीं है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमीडिएटली थैंक यू पेज पे उनको आप एक तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप पे लेकर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, आपको एक और टच पॉइंट मिल गया उनके साथ बात करने का, उनके साथ इंटरैक्ट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जैसे आपको पंकज ने बताया, उनकी एक पास्ट क्लाइंट
खास हर लीड को फोन करते थे। जितने ज्यादा टच पॉइंट होंगे उतना ही ज्यादा चांसेस है आपके लीड का, आपको, आपके ब्रांड को, आपके वेबिनार को रजिस्टर करने का। जब तक आप उनके माइंड स्पेस में नहीं है तब तक वो आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप इज अ ग्रेट वे टू रीच आउट टू मल्टीपल पीपल, क्योंकि आज की तारीख में तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या, एक साथ एक ग्रुप में 1000 लोगों को आप रख सकते हो, तो बड़ा नंबर है। 1000 का ग्रुप बनते बनते भी टाइम लग जाता है, आराम से आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर एड्स बजट। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, इट इज इकोनॉमिकल, ना के बराबर उसका पैसा लगता है। लोग व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते हैं, लोग आते रहेंगे, लोग निकलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने भी लोग हैं वो एटलीस्ट आपका मैसेज चेक करेंगे और उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, उससे आपका अटेंडेंस रेशियो डेफिनेटली बढ़ेगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप को यूज करने का एक सिंपल तरीका है, एक, उनको सिर्फ वेबिनार रिमाइंडर्स मत दीजिए। ये गलती मैंने पेचेक टू प्रॉफिट में की है, जिससे मुझे दिखा है कि आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप के वजह से भी वेबिनार टर्नअप रेशियो बढ़ता नहीं है। तो आप वेबिनार व्हाट्सएप ग्रुप में भी वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। अब ये वैल्यू आपको कैसे प्रोवाइड करनी है, आप सोशल मीडिया में जो कंटेंट डाल रहे हैं आप वो डालिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, पोल्स कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, इंटरैक्शन बनाए रखिए। आपके हर लीड को लगना चाहिए कि आपको उस लीड की इंपॉर्टेंस है। That person is not just a number or a statistics for you. That person is actually a human being that you care about. People don't care about the knowledge that you have. People care about the experience that you bring to them. So उसके हिसाब से focus on this. ये हो गया आपका WhatsApp ग्रुप। पेड WhatsApp API। सो ये पेड WhatsApp API क्या है, एक सिंपल तरीका है, जैसे आप एक साथ 1000 लोगों को एक ईमेल सर्विस न्यूज़लेटर सर्विस प्रोवाइडर से आप एक साथ 1000 लोगों को न्यूज़लेटर्स भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, वैसे ही अगर आपको व्हाट्सएप पे एक साथ बहुत सारे लोगों को पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजने हैं तो आपको मेटा या फेसबुक से एक सर्विस लेनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई। आपने एपीआई पे रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस बना के देते हैं जिससे आप अपना कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट या अपना लिस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो और उस लिस्ट को आप मैसेजेस भेज सकते हो। अब यहां पर आपको एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो सर्विस है ये फ्री नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स फ्री है बिकॉज पीपल आर चूजिंग टू रजिस्टर इन टू योर ग्रुप, टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप, एंड इट्स they can leave immediately whenever they feel like. But for WhatsApp API, suppose when you become a part of my when you become a part of my official WhatsApp list, I will have to give about 50 paisa per day to send a message to you. In 24 hours, how many ever messages I send you without spamming you, I will have to pay 50 paisa for that message. So now imagine this. ये कॉस्ट डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, लेकिन ये बढ़ सकता है। अगर आपके पास 500 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को अगर आप एक दिन में मैसेज कर रहे हो तो उसका आपको कुछ 50 रुपए का लीड कॉस्ट पड़ ही जाएगा उसको वार्म रखने का। अब सपोज अगर आज से लेके 5 दिन के बाद आपका वेबिनार है, अगर आपने 3 दिन अपनी पूरी लिस्ट को मैसेजेस किए तो हर दिन के 50 पैसे के हिसाब से, 60 पैसे के हिसाब से आपको कॉस्ट लगता जाएगा। If you can manage that cost, amazing. It's a really good way to connect with that list. यस एंड Personally, हाँ, मनीष जी वो 50 रुपया नहीं 500 रुपया हो जा रहा है सॉरी, वो 500 रुपया हो वो जाएगा। बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है इसमें। हाँ, इसमें कॉस्ट बढ़ जाता है, आई एम सॉरी, बट फायदा ये, बहुत होता है लेकिन। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये हम्म। एक देखने का नजरिया है। मेरे को एक दूसरे कोच ने बोला था और ये चीज मेरे दिमाग में छप गई थी। आप 50 रुपया, वो टाइम पे 50 रुपया था, आज की तारीख में तो समझ लीजिए आज 100 100 125 रुपया हो गया। आप 100 रुपया फेसबुक को उस लीड को अपने डेटाबेस में डालने के लिए पैसा देने को तैयार हो, लेकिन उस लीड को और 10 रुपया ऐड कर कर वार्म करने को तैयार नहीं। तो ये अभी आपका थॉट प्रोसेस है कि आप इमेजिन कर लो आपको वो लीड 100 रुपए की नहीं 110 रुपए की पड़ी,
लेकिन वो 10 रुपया जब आपने उसको व्हाट्सएप मैसेजेस पे वार्म अप किया, तो उस वार्म अप के वजह से वो आपके वेबिनार में बंदा या बंदी आई, उसने आपका पूरा वेबिनार अटेंड किया और उसने फिर आपसे प्रोडक्ट खरीदा. However, this is only and only my experience. I did not get a very big turnout ratio because of WhatsApp official API channel. तो मैंने उसको फिलहाल पार्क रखा है. हो सकता है I'll get back to it after a couple of months, but as of now, I am putting all my money on 3 platforms. One is my official WhatsApp group. Second is my emails. Third is my Instagram. Now, Instagram बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज इट वेल. आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं इफ यू वांट अस टू टॉक टू यू मोर अबाउट इंस्टाग्राम, हाउ टू यूज इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस, फॉर योर डिजिटल बिजनेस, as a coach, as a agency, as a consultant, as a content creator. We will definitely do that, but be rest assured, to use Instagram well, you will have to give a lot of time to Instagram to create content, to create reels, to create posts. तो अगर आप उसके लिए रेडी हैं और अगर आप Instagram पे एक डेडिकेटेड एपिसोड चाहते हैं, तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड वील डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट एन एपिसोड अराउंड Instagram. So social media reminders और Instagram also works very 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 well. मैंने जब मैं ट्रैकिंग को लेके बहुत पर्टिकुलर हूं, तो जब मैं जूम पे अपना वेबिनार बनाता था, मैं अलग अलग ट्रैकिंग लिंक्स बनाता था. मेरा एक लिंक होता था ईमेल के लिए, मैं 2 ईमेल्स भेजता हूं, एक है डोर्स नाउ ओपन, सेकंड है लास्ट कॉल. वेबिनार चालू होने के 10 मिनट के बाद में भी आपको एक ईमेल आएगा, तो 2 ईमेल लिंक्स होते थे. एक व्हाट्सएप लिंक होता था, एक इंस्टाग्राम लिंक होता था, एक व्हाट्सएप एपीआई लिंक होता था, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन सा सर्विस एक्चुअली काम कर रहा है, मेरा ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे इंटरैक्टिव है. तब जाके मुझे पता चला कि मेरा पेड व्हाट्सएप एपीआई ज्यादा काम नहीं कर रहा है, विच इज व्हाई आई हैव पुट इट ऑन पॉज फॉर नाउ. बट ये सबसे पहला तरीका है. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू डू फॉर देयर बिजनेस. क्रिएट मल्टीपल channels of communication, create multiple touch points so that people can remember you, your brand, your webinar, and take the effort to actually attend your webinar as per pre-recorded time, because people register for webinars left, right and center and they forget about it. ये fact है, ठीक है. तो this is what you need to do. So WhatsApp group, paid WhatsApp API, email reminders and social media. These are your 4 options that are available to you. What do you have to say about this, Pankaj? Do you have anything to add? नहीं, मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के लिए, सभी के लिए तो काम किया ही है हर कुछ. जैसे आप अभी बता रहे थे आपके लिए पेड एपीआई नहीं काम किया, व्हाट्सएप मैसेजेस, तो कैसा रहा आपका कन्वर्जन रेट विदाउट दैट और विथ पेड रिमाइंडर्स? मैंने ज्यादा किया भी नहीं है, मेरे को वैसे भी ग्लिचेस भी आ रहे थे, एंड आई रियलाइज्ड कि देखिए क्या एक सिंपल चीज है. मेरा सिंपल डिपस्टिक टेस्ट क्या था कि जब मैं ईमेल्स भेज रहा हूँ तो उस पर मेरा 7-8% कन्वर्जन आ रहा है. मतलब 7% 8% मेरा जो ओवरऑल ऑडियंस था जो अटेंड कर रहा था, वो इससे आ रहा था, अपना क्या बोलते हैं, ईमेल रिमाइंडर से आ रहा था. 20-30% मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में से आ रहे थे. 20-30% मेरे को इधर से आ रहा था, इंस्टाग्राम से आ रहा था, व्हाट्सएप स्टोरीज से आ रहा था. और जो एक्चुअल एआई सेंसी से जो रिमाइंडर्स जा रहे थे, डिलीवरेबिलिटी बहुत अच्छी थी उसकी. प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अटेंडेंस रेशियो इतना नहीं आ रहा था मुझे. तो आई टेल यू कि कैसे आप उसको एक बार और ट्राई कर सकते हैं, इन केस फ्यूचर में ट्राई करना हो तो. एक तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से ट्रैक कर रहे थे, हाँ. तो वो अलग, उसका अलग वो आता है रिजल्ट्स. मैं क्या करता हूँ, उसको सिंप्लीफाई करता हूँ चीजों को, कि 3 वेबिनार कर लिया विदाउट व्हाट्सएप एपीआई, अगला 3 वेबिनार विथ व्हाट्सएप एपीआई. टोटल अटेंडेंस देख लो कि टोटल पहले मेरा 25% आ रहा था, अब मेरा 25% से बढ़ा कि नहीं बढ़ा एवरेज. करेक्ट, मेक सेंस. अगर बढ़ा तो मतलब उसके कारण बढ़ा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग वहां क्लिक करें नहीं करें उससे फर्क ही नहीं पड़ता है. वो बस उसका दिमाग में डालने के लिए रहता है कि देखो अभी तुम्हारा रिमाइंडर है, फिर हो सकता है वो ग्रुप में जाके क्लिक करके ज्वाइन कर ले, फिर हो सकता है ईमेल से ज्वाइन कर ले. मेक सेंस. तो वैसा भी होता है, आप वो भी एक बार हाँ, चेक ये करिएगा, बहुत तो हो इंपॉर्टेंट सकता है पॉइंट. कि ज्यादा हो, क्योंकि सभी क्लाइंट्स के लिए, मेरे लिए आज तक तो जितना भी रहा है, व्हाट्सएप एपीआई काम किया ही किया है. करेक्ट करेक्ट.
और एक बार करता ट्राई भी है, करिए। कि जैसे मैंने बोला, मैंने खुद उसको पॉज पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी पता है कि फिलहाल जो मेरे 2 या 3 चीजें काम कर रही हैं एट द स्टार्ट में, पहले उसको मास्टर कर लूं, क्योंकि ये कहीं भागा नहीं जा रहा। द बेस्ट यस पार्ट यस अबाउट व्हाट्सएप एपीआई इज इट इज नेवर गोइंग टू गो वेस्ट, क्योंकि वो हम्म एक पेड सर्विस है, मेटा को उससे पैसा मिलता है, सो दे ओनली गोइंग टू कीप मेकिंग इट बेटर एंड बेटर। यस वो तो तो है। उस हिसाब से मैंने इसको फिलहाल पार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि बाकी के 3 चीजों को एक्सप्लोर करना बाकी है। बट what I'm trying to tell our audience members is, do not focus on only one communication point, one touch point. क्योंकि अगर आप सपोज ईमेल पे हैं, हर इंसान अपना ईमेल हर दिन चेक नहीं करता। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाके उसको म्यूट कर देते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे डाल रहे हो, तो हो सकता है आपकी स्टोरी वो टाइम पे ना देखे। बट अगर आप तीनों चीजें कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी आपके लीड की, आपके हर चीज को फॉलो करने की बढ़ जाती है। कि कोई ईमेल पे यस देखेगा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे देखेगा, कोई इंस्टाग्राम पे देखेगा, या कोई आपके दूसरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेगा, लेकिन देखेगा जरूर। यस फिर इसमें एक और दो ऑप्शन और होता है जो मुझे अभी याद आया। एक तो एसएमएस भी भेजा जा सकता है। भले करेक्ट। वो एब्सोल्यूट हो गया है, लेकिन बट फिर भी एक वो वाला एंगल से हम भेजते हैं लोगों को अभी। हालांकि क्लाइंट्स के लिए भेज नहीं रहे, क्योंकि उससे क्या होता है, एसएमएस से इंटरेक्शन बढ़ता नहीं है, करेक्ट। अटेंडेंस रेट भी नहीं बढ़ता है। सबसे मैक्सिमम मेरे लिए व्हाट्सएप एपीआई काम किया है। बट एसएमएस का फायदा ये होता है कि अगर एडिशनल बजट है आपके पास थोड़ा सा, तो उसको डाल सकते हो विद द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग, हम्म। कि हाँ एक और अलग से कंपनी से एसएमएस भी आ रहा है, तो एक इंसान का नजरिया देखने में वो हो जाता है कि अच्छा ये नॉर्मल कोच नहीं है, ये प्रॉपर कंपनी है, इंडिविजुअल कोच टाइप का नहीं है। और फिर उसके बाद हो गया, एक आईवीआर कॉल भी होता है हाँ, कि ऑटोमेटेड कॉल। हाँ शाम को 6 बजे वेबिनार है, तो 5:30 बजे एक ऑटोमेटिक कॉल आएगा, हेलो, और फिर नॉर्मल बोलेगा कि हाँ मैं पंकज अग्रवाल बोल रहा हूँ। लगेगा कि हम ही बात कर रहे हैं, बट एक लाइन का मैसेज दे दिया, वो सामने वाला हम्म। बोलते रहेगा हेलो हेलो। बट पर्सनली मुझे वो स्पैमी लगता है थोड़ा सा। हाँ, कुछ काम मतलब रहता है तो वही अचानक से रहता लगता है गुस्सा आ रहा है, क्यों है। हाँ, वो मुझे कॉल वो कर रहा है। एक्चुअली पहली बार जब हुआ था ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, यार मैं बात कर रहा हूँ और ये मेरे को सामने से फोन क्यों कर रहा है, क्योंकि किसका हुआ था पता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक कोच का, मैं वेबिनार, 6 बजे का वेबिनार था, मैं 5:45 को अपना कैलेंडर में डाल के फ्री होके बैठा था। हम्म मैं 5:50 को अटेंड करने वाला था, और मुझे दिख रहा था कि मैंने ईमेल चेक कर लिया, डोर्स आर नाउ ओपन। मैं हम्म 5:45 को ईमेल देखा, मैं 5:50 तक अटेंड करने वाला था, क्योंकि मुझे पता था 6 बजे चालू होगा। हम्म 5:48 49 को मुझे कॉल आता है, हेलो मैं हम्म एबीसी बोल रहा हूँ, मेरा वेबिनार चालू हो जाएगा। अरे तेरा वेबिनार शुरू हो गया, तू मुझे कॉल क्यों कर रहा है? फिर मुझे, अच्छा ऑटोमेटेड कॉल है। तो हाँ, ये भी है। आप एसएमएस हाँ मार्केटिंग और आईवीआर कॉलिंग पे भी फोकस कर सकते हो, इफ यू हैव द बजट। और सी, इसमें एक और चीज है, आपके टारगेट ऑडियंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होने वाला है। हम्म अगर आप सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ बात करो, तो लिंक्डइन पे फोकस करो। अगर आप पर्टिकुलरली सपोज आप कोई हेल्थ ओरिएंटेड नीश में हो, और आपने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे हर हफ्ते 50 100 150 टारगेट ऑडियंस आपके ऐड हो रहे हैं, तो आप वहां पर भी एक बार के लिए मैसेज डाल के देख लो। द आइडिया इज सिंपल, इफ यू फाइंड अ वे टू ट्रैक एवरी क्लिक, एंड इफ यू सी कि ओके दिस क्लिक इज वर्किंग एंड दिस क्लिक इज नॉट वर्किंग, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आपका कौन सा मोड सबसे ज्यादा काम करता है। हम्म मेरे हिसाब से वो ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। वुड यू अग्री टू दैट, पंकज? यस हाँ। सो ये सारे हो गए रिमाइंडर्स के तरीके, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पंकज ने आपको राइट एट द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट एपिसोड बता दी, कि एक टूल है, एक तरीका है, एक टिप है, एक एक्शन स्टेप है, जो अगर आप लेते हो, तो ना ही आपका सिर्फ वेबिनार टर्नआउट रेशियो बढ़ सकता है, आपका कन्वर्जन रेशियो भी बढ़ सकता है, और उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि आपका ब्रांड भी बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर, विच इज कॉलिंग एवरी लीड and introducing your brand, introducing your webinar, introducing your product, and understanding the need of the customer even before you interact with them in the webinar. So Pankaj, would you like to talk a little more about how does this process work? या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आप चाहे कि मैं इसमें आंसर करूं, तो मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूं इस टॉपिक को लेके। ठीक है। तो ये हम लोग जैसे कि स्टार्टिंग में हम बताए थे कि कॉल करना सबको अच्छा रहता है, कि इट विल बिल्ड अ ब्रांड, प्लस सामने वाला को भी लगता है कि
सामने वाला मेरा केयर कर रहा है, मतलब ये कोई रैंडम एक वेबिनार नहीं कर रहा है, आप उसके बारे में जान रहे हो कि आप उससे बात कर रहे हो, तो आप और समझोगे। तो वो जितनी बार भी मैं लोगों को कॉल किया हूँ पर्सनली, तो उस समय वो लोग अटेंड करता ही करता है। बट स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था लोगों के पास, जो लोग हमको बोलते हैं कि मैं खुद क्यों कॉल करूं, फिर वो अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं ही ट्रेनर हूँ, मैं ही लोगों को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि सबसे बेस्ट रहेगा कि आप खुद ही कॉल करो जितना कॉल कर पाओ। क्योंकि आप टेलीकॉलर से लगाओ या किसी और से लगाओ, एक तो पैसा लगेगा उसमें, प्लस उतना पर्सनल लेवल पे आप फीडबैक नहीं ले सकते हो। हम्म आप खुद कॉल करोगे तो लोगों को बोल सकते हो ना, अगर आपको शर्म लग रहा है कि मैं खुद इंडिविजुअली कैसे कॉल करूँ, छोटा कंपनी लगूंगा, तो आप छोटा कंपनी हो तभी तो कॉल करने के लिए बैठ रहे हो ना। बड़े हम्म कंपनी होते तो आप ये पॉडकास्ट भी देखते नहीं, पहली बात तो। हम्म तो बट मान लेते कि आप लोगों को ऐसा बोल सकते हो ना, मैं ऐसा ही बोलता हूँ कॉल करके कि रैंडमली मुझे आज नया ऐड चालू किए थे, तो उसको फीडबैक के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ लोगों को कि ये नया ऐड मेरा कैसा चल रहा है। सो मैं 10 लोगों को पर्सनली आज कॉल करने वाला हूँ। सो आप उनमें से एक कस्टमर हो, सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। इस टाइप से मैं बोल देता हूँ लोगों को। लोग सामने से खुश हो जाते हैं कि अच्छा हाँ, ये तो पर्सनली मेरे को कॉल कर रहे हैं। तो वो जो फियर रहता है ना लोगों के मन में कि ये क्या, कैसे कॉल करे, तो वो फियर निकल जाता है। तो आई थिंक मनीष जी, ये वाला चीज को हम लोग मॉक करके दिखाएंगे लोगों को, तो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन हो पाएगा ये कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं। बहुत श्योर, ये कर सकते हैं। और उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मुझे ये जेन्यूनली बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात, क्या मैं उन कोचेस के साथ बात कर सकता हूँ थोड़ा ऐसा प्यार मोहब्बत से, जिनको लगता है कि वो सामने से कॉल करेंगे तो उनके कंपनी और ब्रांड का इंप्रेशन बहुत छोटा बैठेगा? हाँ, बताए थे अब ये टॉपिक पे हम लोग पहले भी बात किए थे, तो आपका रिप्लाई पता है, बट आप बताइए। भाई, अगर आपको लगता है ना कि आप छोटे दिखोगे, तो आपकी सोच को सबसे पहले तो आप बदलो। क्योंकि जैसे पंकज ने बोला, अगर आप बड़े होते तो आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी बात, मैंने पर्सनली जब लोगों से बात की है, उनका जो इंटरेस्ट लेवल है, आपको लग रहा है कि आपका ब्रांड छोटा होगा, अपनी सोच बदलो। आपका एक्चुअली रिस्पेक्ट बढ़ेगा आपके लीड्स के दिमाग में। और उनको लगेगा, यार अगर ये बंदा इतना ध्यान दे रहा है अपने बिजनेस में, अगर ये इतना कंसिस्टेंट है, ये बंदी अगर इतना हार्ड वर्किंग है, ये बंदी अगर इतना सोचती है अपने लीड और अपने बिजनेस के बारे में, तो ये कितना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। आप खुद इमेजिन करो, ये कहीं ना कहीं आपका जजमेंटल थॉट प्रोसेस है कि अगर आपको कोई फोन करेगा तो आप उनको ऐसा, आपके दिमाग में ऐसा इंप्रेशन आएगा कि यार ये बंदा इतना छोटा है, ये कॉल कर रहा है। अगर ये आपकी थॉट प्रोसेस है, तो आपको थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, अगर आपको फियर है, तो जो भी अगर आपको जज करेगा ना, वो आपके वेबिनार में ही नहीं आएगा। और वो उल्टा अच्छा है, क्योंकि वो जजमेंटल ऑडियंस आपके वेबिनार में आने से बच जाएगी। हम्म। कॉल करने से नुकसान होने का चांस है ही नहीं। एंड एज पंकज ने बताया कि जैसे ही आप कॉल करोगे, आपको इतने सारे इनटेंजिबल बेनिफिट्स नजर आएंगे। आपको इतना कुछ समझ में आएगा अपने लीड के बारे में, आपके एड के बारे में, कि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपका एड बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मेरे ही एड्स का। जब मैं एड्स चला रहा था, तो मेटा के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपका एड कहाँ कहाँ विजिबल होना चाहिए। तो उसमें एक ऑप्शन होता है अदर नेटवर्क में। अदर नेटवर्क मतलब क्या है, कि मेटा का जो पूरा एड प्लेटफॉर्म है, वो तो हर जगह पे काम करता है। तो आपने सपोज एड चलाई है मेटा के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपको एड आएगी आपके एंड्रॉइड ऐप में, आप किसी गेम खेल रहे हो तो गेम में, अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट पे सर्फ कर रहे हो तो वहां पे भी आपको एड दिखेगी। ये आपको पता नहीं चलता है, ये ऑडियंस को पता नहीं चलता, लेकिन जो एड चल रही है वो एक्चुअली फेसबुक के थ्रू चल रही है। ये पूरा नेटवर्किंग, अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। बट मेरी एड सबसे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही थी जब वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ही ऑडियंस को नजर आ रही थी। अदर नेटवर्क्स में जब भी एड दिख रही थी, तो वो मेरे टारगेट ऑडियंस से मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक है। आई वॉन्ट टू टॉक टू पीपल हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, हु आर एडुकेटेड, हु आर ईदर वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स। तो मेरा लीड कॉस्ट हाई होता है थोड़ा, दैट्स ओके, बट मेरा ऑडियंस भी बहुत अलग लेवल का है। तो वो अदर नेटवर्क पे वो मैच नहीं हो पा रहा था। और ये मुझे कैसे पता चला? मैं जब कॉल कर रहा था लोगों को, जब कॉल कर रहा था तो समझ में आ रहा था, ठीक है ये एडुकेटेड है, बट ये कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। और मेरा पूरा कंटेंट, जब मैं कोच आई नीड हेल्प के अलावा जहां पे भी कंटेंट बनाता हूँ, पूरा इंग्लिश में बनाता हूँ।
तो अगर आप मेरी भाषा ही नहीं समझ पाओगे, और इफ यू नॉट एंटायरली कंफर्टेबल विद इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, यू आर नॉट गोइंग टू गेट वैल्यू आउट ऑफ माय वेबिनार. So even if you're a good quality lead, you're not a qualified lead for me. How did I understand if you're a qualified lead for me? Because I called my leads. Because I understood, okay, this lead is also coming from other network. This lead is also coming from other network. That is the sort of intangible benefit that I got by calling my leads. So please call as many leads as possible, if not every lead. And Pankaj has already given you a cheat code by telling you that you don't have to, for me, I am just getting one call. I don't know if Pankaj is calling 5 people or 50 people in a day. For me, I will only register what Pankaj is telling me. And what did Pankaj tell me? I am the lucky person. Why am I lucky? Because a new ad is being run. And out of that ad, of all the leads that Pankaj is getting, he's going to call only 10 people. And out of the 10 people, I am the one. I am already feeling special. If you don't know how to make the other person feel special, maybe the mock call that we will do right now is going to help you understand it better. सो पंकज, आपको ये कैसे करना है? आप मुझे कॉल कर रहे हो एज अ मॉक कॉल, या मैं आपको कॉल कर रहा हूँ? आप मेरे लीड हो या मैं आपका लीड हूँ? आप मुझे कॉल करिएगा, बट उससे पहले मैं एक दो पॉइंट और ऐड करूंगा हाँ आपके प्लीज बातों प्लीज. का कंटिन्यूएशन। हाँ जो आप बता रहे थे लोगों को कि आप अलग अलग मतलब लोगों को कॉल कर रहे थे, आपके पास मान लेते 50 लीड आया था, हाँ हाँ तो आप बताइए कि ऑडियंस नेटवर्क पे जो लोग आया था हाँ. उनका क्वालिटी अच्छा नहीं था, बट मेरे लिए. इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म आपके लिए, हाँ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे जो इंस्टाग्राम ब्राउज करते करते जो आपका क्लिक किया वो आपके लिए अच्छा था, फेसबुक वाला अच्छा था, बट किसी और थर्ड फोर्थ पार्टी वाला ऐप में अच्छा नहीं था। करेक्ट. अब बहुत ऑडियंस के मन में ये बोलेंगे हाँ बात तो सही है, लेकिन ये होता है क्या है कि ये पता कैसे चला मनीष जी को कि ये ऑडियंस कहाँ से आया था? तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं लोगों के लिए कि एक यूटीएम ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है हाँ कि कैसे सेटअप करना, तो वो सब नहीं बात कर रहे, बट होता क्या है कि यूटीएम ट्रैकिंग जब कर लेते हो या फिर बेसिकली अलग अलग लिंक बनता है, जो स्टार्टिंग में मनीष जी कह रहे थे अलग अलग लिंक है, तो फेसबुक ऐड पे कोई क्लिक कर रहा है वो आपका दूसरा लैंडिंग पेज पे जा रहा है, इंस्टाग्राम से क्लिक कर रहा है तो दूसरा लैंडिंग पेज पे जा रहा है, वो अलग से रजिस्टर हो रहा है अलग फॉर्म पे, कहीं और रजिस्टर कर रहा है तो अलग हो रहा है। तो इस तरह से मान लेते 3 लैंडिंग पेज बनाए आप, और तीनों जगह अलग अलग डाल दिए, यूट्यूब पे अलग डाल दिए, फेसबुक पे अलग डाल दिए, गूगल पे अलग डाल दिए, जहां जहां आप चला रहे हो अलग डाल दे रहे हो। और फिर आप जैपियर उपीयर कनेक्ट करके पैबली जैपियर जो भी ऑटोमेशन टूल यूज करके उस सारा चीज को एक जगह गूगल शीट में एंटर करवा ले रहे हो, और आपको पूरा यूआरएल दिख जा रहा है कि ये पर्सन यहाँ से आया था, वो पर्सन यहाँ से आया था। और हम अलग अलग लैंडिंग पेज बोल दिए, बट इसका शॉर्ट भी होता है बाद में कि एक ही लैंडिंग पेज बना के आप यूटीएम वगैरह डाल के कर सकते हो। बट हाँ, ओवरऑल हम ये बताना चाह रहे थे कि ऐसे होता है कि आपको करेक्ट. अलग अलग ट्रैकिंग पहले करना पड़ेगा, तब जाके आपको डिफाइन होता है कि क्या हो रहा है। सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, ऊपर से आप ऐड भी ट्रैक कर सकते हो हाँ. कि आप चार चार तरह का ऐड डाले, चार मैसेजिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल मनीष जी, आपका आपका जो चार ऐड था वो जो फेमस एग्जांपल है पेचेक टू प्रॉफिट का, तो ऑडियंस आपका ऑडियंस सेट एक ही है, टारगेट ग्रुप, बट आप हुक अलग अलग डाल रहे थे। करेक्ट. जैसे एक आप बोल रहे थे कि क्या क्या बता रहे थे एक डेट. बार आप? मेरा एक है डेट. दूसरा है यू आर फीलिंग ब्रोक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तीसरा है you don't feel comfortable because you're not making all the investments by yourself. और fourth है you have made loss in your past investment opportunities. तो ये यस अलग अलग पेन पॉइंट्स है लोगों के जो पैसों के साथ बहुत इजीली एसोसिएट करते हैं. वैसे ही एज पर योर नीश आपको पता होगा कि आपके क्लाइंट के या आपके मार्केट के पेन पॉइंट्स क्या हैं. तो उन पेन पॉइंट्स के हिसाब से जब आप ऐड बनाओगे तो आपको ट्रैकिंग में वो भी इजी हो जाएगा कि अच्छा ये यस वाला ऐड ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, ये वाला ऐड कम काम कर रहा है. यस। तो पहले तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे मैनेज ट्रैक कर पाए थे कि ये प्लेटफॉर्म करेक्ट. पे मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म पे अच्छा चल रहा है। करेक्ट. फिर अब मान लेते हैं वो फेसबुक का ही बात कर ले, तो फेसबुक हाँ. में भी वो अब देखेंगे कि ये चार ऐड है, बट जो लोग ये मैसेज देख कर आया है वो उसका थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस से 100% मैच कर रहा है, तो मैं करेक्ट. इसी के इर्द गिर्द और मैसेज बनाऊंगा। तो करेक्ट. वो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रैक करो और फिर उसके हिसाब से कॉल करोगे तो आपको और अच्छा पता चलेगा। मेरे केस में क्या होता है कि मैं कोचेस को सिखाता हूँ कि अपना कोर्सेज कैसे बेचे, तो मैं हम्म. मेरे लिए तीन तरह का एग्जांपल मैसेज हो गया कि एक हो गया कि कोर्सेज कैसे बेचे, हम्म. तो इ- इसका मतलब ये हो गया कि उनके पास ऑलरेडी कोर्स है, अब हम उनको बेचना सिखा रहे हैं। हम्म. सेकंड एग्जांपल हो सकता है कि हाउ टू स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस। अब ये अलग टाइप की ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी
कि चालू कैसे करना है। इनके पास तो कोर्स था ही नहीं, कुछ नॉलेज ही नहीं था, उनको चालू करना सिखाना है। इसी तरह से थर्ड हम लोग कुछ और बना लिए। तो अब मैं वापस से जब कॉल करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे सबसे ज्यादा किस तरह के लोगों से बात करने में मजा आ रहा है, कौन से ऑडियंस मेरे से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ आपका सर्वे पे भी एक्ट करेगा। दूसरी बात, जो सेकंड पॉइंट मेरे यहाँ पे है, कि कॉल करने का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या दिखता है और क्यों मैं डीपली लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मुझे हर कॉल से एक ऐड आइडिया मिलता है, नया आइडिया, कि अच्छा हम तो ये बोल रहे थे, लेकिन अब जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ ना, कल वो आई थी मेरे पास, वो बोली थी कि 150 लोग आए और 70 लोग अटेंड किए, तो इसलिए मुझे फ्री वेबिनार पसंद नहीं है। बट मुझे इस पे आइडिया मिल गया कि अब इस टॉपिक पे मैं बात कर सकता हूँ कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लोग कम आते फ्री वेबिनार में, सीरियस नहीं है, और 100 में से सिर्फ 85 लोग आ रहे हैं, या 100 में से सिर्फ 30 लोग आ रहे हैं, बट पेड वेबिनार आप करते हो, पेड वर्कशॉप करते हो, तो 100 में से 80 लोग आते हैं। तो आपको ऐसा डिफरेंस दिख रहा होगा, बट क्या आपको पता है पेड वर्कशॉप में कॉस्ट भी 10 गुना ज्यादा आता है। तो मैं लोगों को एडुकेट कर सकता हूँ इस बारे में। बट ये सब ख्याल मुझे तभी आ रहा है ना, जब मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली। तो हर तरह से आप स्टार्टिंग में जितना 1 to 1 कॉल कर लो, हम लोग तो कुछ ही फायदा का बात कर पा रहे हैं जो याद आ रहा है टॉप में, बट इसका अनलिमिटेड फायदा है, नुकसान जीरो। मतलब जैसा मनीष जी बोले, लिटरली जीरो नुकसान है। तो कॉल कर ही लीजिए, कोई भी एक्सक्यूज देना ही दीजिए, आपका बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, अब हम कॉल लोग ना करने के 500 रीजंस है। कॉल हाँ, करने का एक ही रीजन है, आपका बिजनेस में प्रॉफिट बिजनेस ग्रो बढ़ने का करना है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगा। अब आप बताइए आपको कौन सा रीजन ज्यादा पसंद है। बस अपना वन वो जो भी करना है अपना देख लो। हाँ। ठीक है, तो मान लेते हैं मनीष जी, मैं बन जाता हूँ लीड। मैंने आपके हम्म। ऐड को देखा, और कल ही देखा था ऐड को, और मैंने रजिस्टर किया अच्छा। पेचेक टू प्रॉफिट वाले वेबिनार पे। ठीक है। और मैं अभी बाहर हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ। अब आप कॉल करिए मुझे। ठीक है। सो द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी बिकॉज हमारा ये पॉडकास्ट इंग्लिश में होता है, ये वाला कॉल मैं हिंदी में करूंगा बिकॉज आई एम वेरी हम्म, कंफर्टेबल टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस। बट जनरली जब मैं पेचेक टू प्रॉफिट के लिए कॉल करता हूँ सिर्फ इंग्लिश में बात करता हूँ, ये सिर्फ एक नहीं हल्का सा डिफरेंस तो है। आप इंग्लिश में ही कर लीजिए ना, मैं चलो ठीक कोशिश है, करता हूँ मैं परफेक्ट। टूटा फूटा बोलने का। हाँ ठीक है, परफेक्ट है तो फिर क्योंकि हाँ चलो ठीक है करते हैं। हाँ, ट्रिंग 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 ट्रिंग। फोन हेलो, उठाइए। हाँ। हे, इज दिस पंकज? यस, आप कौन? Hi Pankaj, I'm Manish Ahuja calling you from Paycheck to Profit. This is with regards to a webinar that you signed up for yesterday at about 5:30, if you remember. 5:30 in the evening, you saw an ad on Instagram. किस बारे में थोड़ा और रिमाइंड करिएगा मुझे, थोड़ा कम, 4-5 वेबिनार में रजिस्टर किया था, सो। This is with regards to money mindset. Build a new money हाँ mindset. हाँ हाँ हाँ, Get यस more. यस यस, आई How are you रिमेम्बर doing, क्लियरली। Pankaj? Yeah. यस, I'm so glad you remember. हाँ, क्योंकि How are वो you doing, ग्रीन Pankaj? ग्रीन थीम था ना आपका, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा Exactly. था Yes, मनी yes, माइंडसेट yes. से। आई एम डूइंग ग्रेट। आई वाज Okay. जस्ट हैविंग पिज्जा हियर एट डोमिनोज। आई एम Oh, so एंजॉयिंग am I इट। disturbing you? नहीं नहीं, लाइक इट्स अ ग्रेट टाइम, लाइक आपसे आपका कॉल आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू विल बी कॉलिंग पर्सनली। क्या आप मनीष ही बोल रहे हो क्या? Yeah, I'm Manish Ahuja, as in the person who you saw in that video or the ग्रेट image. ग्रेट, चलिए हाँ, ये अच्छा है, okay. अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हाउ आर यू No, but मनीष? I am feeling guilty considering that you are having your meal. Do you want me to call you in after about 10-15 minutes नहीं or नहीं, later on? I mean I'm just waiting for the meal. I'm not having it right now, of course. Okay, in I'm that just case, it's waiting. perfect. And by the time your pizza is ready, this call should be done, and I'll probably get to know a little bit more about you. So this will take about 5 minutes. I hope you have that sort of time. Yes, I have that. No problem. Thank you so Please much, carry Pankaj. on. Could you tell me a little bit about yourself? What do you do? I'm a digital marketer. Oh, okay, great. So are you working somewhere or are you managing your own business, freelancer? Could you give me a little more information about this? I'm managing it on my own. Like I have a small agency where I have a team of 2-3 people, and that is how I'm working right now. If you are managing about 3 people, I'm assuming you have over 8 to 10 clients. Yes, you can say that. So that's not a small business at all, because I'm sure you know that most agencies are 1 or 2 people agencies, and they are not doing that great business. But if you are managing about 3 people full time, you are running a fairly medium sized agency. Nice. You have started giving me mindset lessons right here, right now.
No, this is just coming from business family. I just understand how business works, and True. talking to business owners left, right, and center. I've understood how money works, right? So that's the whole reason why I'm even talking to you. But tell me, Pankaj, what made you sign up for this webinar? If you have some sort of a remembrance of what happened, you were probably watching some reel and you thought a random geeky looking specs wearing guy came to your screen and he started talking to you about money. What made you sign up for this webinar, if you remember? See, I also come from a middle class family. So Mm-hmm. there is always like, I know that this is right, this is wrong. Lots of things I know that we shouldn't do this, but somehow those mindset is deeply rooted in such a way that I'm not able to remove that. That Mm-hmm. नहीं इस पे स्पेंड करे करना चाहिए पैसा कि नहीं करना चाहिए, बिजनेस पे स्पेंड करे कि नहीं करे, लोन लेना चाहिए. ऑफ कोर्स एज अ बिजनेसमैन आई अंडरस्टैंड दैट कि लेना चाहिए, अच्छी बात है. बट कभी कभी व्हेन पीपल इंटरफेयर कि नहीं नहीं लेना चाहिए, तो आई स्टिल थिंक कि नहीं ले कि नहीं ले, मतलब I just want to make my mindset completely different from what I've been seeded till now. जो मैं माइंड में डाला गया उसको पूरा, is there a way to completely do deroot that, या फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा. तो वो मैं देख रहा था कि क्या वेबिनार में मुझे वो सब सीखने को मिल सकता है, एंड हाउ यू कैन हेल्प इन दैट. Great. सबसे पहली बात, let me tell you, I am so happy to understand that I am talking to somebody like you because the amount of clarity that you come up with. See, obviously you have questions. That's exactly why you signed up for this webinar. But even the clarity of questions, clarity of direction that you come up with is so marvelous, because I'll tell you something. I just ran a new ad yesterday, as in the ad that you saw. I've already gotten about 50 odd leads, and I decided to just call randomly 10 people to understand whether my ad is working correctly or not. I've already made about 6 calls, and you're the 7th person I'm talking to. And let me tell you, you are one of the most well researched and well spoken people that I'm talking to today, because obviously I've gotten really good audience who I've spoken to, but the questions that you're coming up with, the kind of vocabulary that you're using, the kind of background that you come from, the kind of information that you're sharing, I'm really grateful for your time. This is probably one of the best things that I've done today in my business, because I know that I'm talking to the right set of audience. So I understand that you're telling me that your challenges that I identify are that you have some questions around money, you are overwhelmed with all the options that you have, you don't know how to pick up the right options, how to get clarity of what is right for you and what is wrong for you. Am I right? Yes, kind of. We can discuss in details once Of I course, connect of with course. you. Yeah. But let me tell you, would you be open to a new thought process about how to build a better relationship with money before you understand how can you actually manage your money better? Of course, that is why I signed up for your webinar. It was saying how to build your money mindset. That was the kind of headline, I think. Correct. So what happens is, a lot of points that you mentioned are directly or indirectly connected to how to manage your money better. But to manage your money better, you need to understand the vocabulary of money, the language of money. How do you actually get into the right money mindset? How is it that millionaires think differently from other people? As you said, there are so many options that are available in the market, but you don't know how to choose the option which is best for you. For that, I would really invite you and want to see you at the webinar, which is happening on Saturday evening, 6 p.m. Please clear your schedule. Tell me something. Are you following me on Instagram and YouTube? No. Oh, okay. And is this number of yours also available on WhatsApp? Yes. So could you please do me a favor? What I'm going to do once we disconnect this call is I am going to send you a link of a YouTube video, which will give you a lot of perspective on the kind of questions that that you've put in front of me. I remember having posted a video on why do we have so many questions about money and how do we get answers to all of them. Okay. I'll share that YouTube link with you on WhatsApp after this call. And I'll also send you an invite to a WhatsApp group. Now, this is a group where only I can send messages. So nobody else is going to spam you on that group. And I will send you reminders of the upcoming webinar on WhatsApp and email. Is that okay with you? I'm already receiving your updates on email and WhatsApp group. I'm already a part of Okay, that. you are a part of the WhatsApp You group. can just send me that social media I will thing. definitely do that. Yes. I'm so happy that you actually took the pains to also sign up to the WhatsApp group. Thank you so much.
And yeah, I will definitely keep sending you updates on about the webinar, about the new content that I create. I generally create one new piece of content every day. So please follow me on all the other social media platforms also. But I'm definitely, after we disconnect, I am going to send you the YouTube video that I told you about. And I will also really, really look forward to seeing you on Saturday at 6 p.m. in the webinar. Yes, that will be great. I'll be attending that. And Manish, by the way, can you tell me what is the price of the course for that webinar in case I would decide to purchase and all? See, first of all, let me tell you something very honestly. The reason why I'm doing the webinar is to spread more knowledge and information. Okay. When I say it's a no obligation webinar, it is actually a no obligation webinar. Okay. I can tell you the total value of the program that I'm going to offer is about 60,000 rupees. However, if you attend the webinar and if you choose to sit through the entire webinar, I am going to give you an offer which is going to be a no-brainer offer. I would recommend, instead of knowing the price, come attend the webinar, go through all the information, see if it is even the right fit for you. And besides the right fit, also understand if you would be interested to become a part of the community, because it's not just about the program, it's also about what else do I offer. And my offer will only make sense when you actually understand the entire perspective of money mindset, money blocks, law of attraction. What is it that people need to do? What is the most important component of business? Why do people fail when they're trying to manage their investment? So there is so much that I'm going to cover. So price is going to be the least factor. And I can assure you, based on the fact that I already have about 200, 300 people in my community, that price is not going to be a reason why you will not be wanting to sign up for the webinar. But Sure. you Definitely I'll already, attend. By the way, yeah, one small request. please. Can I also bring my wife into that webinar? She's doing a job and I think this webinar might help her as well. I would be more than happy to welcome your wife as well. What I'll also do is I'll already made a point. In that WhatsApp message, I'm also going to send you a link so that you can forward that link to your wife and she can also register for the webinar. So what will happen is she will also start getting all the social media updates, all the email Yes, updates. Now yes. what happens is, let's say you will resonate very strongly with money blocks related content and she will resonate very strongly with law of attraction content. So I Maybe. would like to give same value to both of you so that both of you grow together. And yes, I would Makes be more sense. than happy to invite your wife as well. Yes. So please don't forget to share the link. I'll forward that to her as well. For sure, for sure. All Don't right, bother. Mahesh. I am making sure that I'm sending you that YouTube video link and also the link for the webinar for your wife to register. Sure. Thank you for connecting. It was nice talking to you. Oh, pleasure. I hope your pizza is getting delivered in the next few minutes. Until then, if you Yes. want Just to a talk couple to of me about minutes. anything, please let me know. No. I won't take much of your time now. I've already taken so much of your time. No. So I'm more than happy. As I told you, you are one of the best people I've spoken to today. So I'm more than happy to keep you thank you. company until the pizza arrives if you want. No problem. We can connect again on the webinar. Thank you. Thank you so much, Pankaj. Thank I you. really look forward to seeing you and your wife at the webinar. I'm sending you both the links and enjoy your pizza. Thank you so much. Yes. Bye. ये होता है मेरा कॉल, मॉक कॉल। तो अप्रोक्स कितना हो गया होगा हमारा 5-10 मिनट्स हो गया होगा मेरा पता है पंकज, मैं आज तक कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरा मॉक कॉल कितना टाइम चलता है, क्योंकि मेरे मॉक कॉल्स 30 सेकंड में भी मैंने फोन रख दिया है इफ somebody tells me that they don't understand English, क्योंकि मुझे पता है वो अगर इंग्लिश नहीं समझते हैं, अगर उससे कंफर्टेबल नहीं है, तो मेरे वेबिनार से वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। और मेरे मतलब मेरे ये इंट्रोडक्टरी कॉल्स 30-30 मिनट भी चले, क्योंकि क्या होता है, मैं एक चीज के ऊपर जरूर ध्यान देता हूं कि मैं उनको सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव दूं, नॉलेज ना दूं। जैसे आपने मुझसे एक ऐसा गूगली क्वेश्चन पूछ लिया कि प्राइस क्या है प्रोग्राम का, तो मैंने पर्सपेक्टिव दिया लेकिन आपको आंसर नहीं दिया कि मेरा ऑफर प्राइस क्या होने वाला है या क्या है। तो ऐसा कभी कभी कोई इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लेता है, कोई पूछता है कि मनी ब्लॉक्स क्या है, तो मुझे समझ में आ गया कि इस इंसान को जेन्युइनली मेरे कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों में इंटरेस्ट है, तो मैं उनका और उल्टा नीड बढ़ाता हूं कि ताकि वो वेबिनार कैसे भी अटेंड करें। और क्या टेक अवे था आपका इस कॉल पे? सबसे पहली बात, जब आप बता रहे थे कि आपको वॉइस ऑफ द कस्टमर समझ में आती है, तो आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे थे, तो मैंने वो वर्ड्स, अभी आपने बहुत नेचुरली बात की तो आपने ध्यान भी नहीं दिया, बट यू यूज सम टर्म्स व्हिच आई एम गोइंग टू यूज इन माय कॉपीज इन द फ्यूचर। डीप रूटेड क्वेश्चंस अराउंड मनी, ऑप्शन, नीड मोर क्लैरिटी। तो ये सारे वर्ड्स अगर हम अपनी कॉपी में यूज करेंगे तो उल्टा बहुत इजीली दूसरों के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे।
यस, जैसे कि मुझे पता है डीप रूटेड नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, मेरे लिए ये है, बट आपके लिए हो सकता है कि आप सोचोगे अरे ये भी कोई वर्ड होता है, ये तो लोगों को पता करेक्ट, ही रहता है, ये इसको क्या लिखना, कुछ फैंसी बना के लिखो, कुछ फैंसी। बट करेक्ट, फैंसी नहीं हो सकता कि लोग उसी से कनेक्ट करते हैं जो सुबह शाम कनेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। और एक और चीज जो मैं ऑडियंस को इसके ऊपर फोकस करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही पंकज ने कहा कि कैन माय वाइफ अटेंड, मैंने इमीडिएटली उनके वाइफ को भी एक लीड बना दिया। हम्म। मैंने ये नहीं बोला कि हाँ उनको भी लेकर आ जाना, बोला नहीं, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक आप अपनी वाइफ को फॉरवर्ड करना, और ये जो लिंक होगा ये वापस एक यूटीएम लिंक होगा, ताकि मुझे पता चले कि पंकज भले मेरे पास फेसबुक ऐड के थ्रू आए हैं, लेकिन पंकज की वाइफ जब वो रजिस्टर करेंगे मेरे डेटाबेस में तो वो ऑर्गेनिक लीड की तरह ही आएंगे, हम्म। क्योंकि उनके लिए मैंने फेसबुक को पैसा नहीं दिया, वो तो मेरे को पंकज हम्म। के थ्रू, रेफरल के थ्रू मिले, राइट। और ये यस। सोशल में भी नहीं आएगा, तो मेरे लीड्स भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है सोशल, अगर सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है। सेकेंड होता है ऑर्गेनिक, जैसे सपोज ये तो बहुत कम होता है कि ऐसे रैंडमली किसी को सिर्फ मैंने लिंक दे दिया और वो डायरेक्टली साइन अप कर लिए, ये 1% 2% से ज्यादा नहीं होगा, बट फिर भी वो 2% का भी स्लाइस आगे जाके बड़ा हो सकता है। और तीसरा है पेड एड्स। तो ऐसे आपको लिंक्स भी बना के रखना है, आपको उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि आप उसको कौन सा लिंक दे रहे हो, उसमें यूटीएम कैसे ट्रैक कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएंगी। यस, और रैंडमली फायदा हो गया इसमें मुझे एक और फायदा दिखा कि एक रेफरल आपको मिल गया कॉल करने से, करेक्ट, एक अच्छा करेक्ट। क्वालिटी का कस्टमर मिल गया। हो सकता है वो वेबिनार अटेंड ना करे, ये भी हो सकता है, आज हम नहीं हाँ करे हाँ अटेंड, हाँ अभी तुम हाँ बहुत प्यार से बात कर लिया आपसे 10 मिनट, हाँ हो सकता है नहीं करे, हम भूल गए, कुछ भी कारण हाँ, हो सकता है। ऑफ कोर्स। लेकिन अब मुझे आपका आवाज याद है, अभी तक मैं खाली शकल देख रहा था, मतलब शकल और आवाज था ही, लेकिन अब पर्सनल टच याद है कि अच्छा वो करेक्ट, पर्सनली भी बात करते हैं। तो अब करेक्ट, जब आपका मेल्स मेरे पास आएगा, जब मैसेजेस मेरे पास आएगा, अब मैं उसको नॉर्मल मेल से कंपेयर नहीं करूंगा, उसको अलग नजरों से देखूंगा एग्जैक्टली, कि हाँ एग्जैक्टली। इनसे तो मेरी बात हुई थी, तो मुझे लगेगा कि हाँ, अच्छा हाँ ये मतलब ये ह्यूमन है, मैं इनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। एक होता है ना, ह्यूमन सभी है, मेरा कहने का मतलब कि पर्सनली कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास उनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। हाँ, तो ये एक चीज है यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, मैं पर्सनली अपने पर्सनल नंबर से कभी किसी से बात नहीं करता। हम्म। मेरा एक पेचेक टू प्रॉफिट के लिए नंबर लिया हुआ है जो व्हाट्सएप ग्रुप वाला है, उस पे हम्म। भी मेरा कॉलिंग हमेशा ऑफ ही रहता है, उस पे जब मैं चाहूँ तब मैं सामने वाले को फोन कर पाता हूँ, लेकिन मैं वहां पे कॉल्स भी अप्रिशिएट नहीं करता क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। बट हाँ हाँ मतलब ये, कॉल नहीं, हाँ, मतलब एटलीस्ट मैसेज कर सकता है ना इंसान करेक्ट, कि करेक्ट, करेक्ट। आपका वेबिनार अटेंड किए थे, या फिर कुछ भी एक रहता है, तो वहां पे भी धीरे धीरे बात करके लॉन्ग टर्म में मान लेते हैं आप टेली कॉलिंग टीम लगा दिए, हाँ वो हाँ, बात करके क्लोज कर रहा है, तो इंटरेक्शन का थोड़ा और बढ़ जाता है स्कोप, और फॉर एड श्योर, आइडियाज तो आपको मिल ही रहा है, तो फॉर पूरा श्योर। ही फायदा दिखा है इस कॉल में। और मनीष जी मान हाँ, लीजिए कोई खराब कस्टमर आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे फिर? एक वो भी मॉक कॉल कर लीजिए, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है खराब कस्टमर होता क्या है, तो आप एक खराब कस्टमर बनने की हाँ कोशिश एग्जाम्पल कीजिए। के लिए, जैसे वो वाला डर दूर कर लेते लोगों का, जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर कोई कुछ खराब, मतलब हम बनते कॉल कोशिश करते हैं रैंडमली कुछ भी सोचते हैं। ठीक है, ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। Hey Pankaj, Manish Ahuja here, calling you from Paycheck to Profit. Is this a good time to talk to you? नॉट अ गुड टाइम, Okay. This was लाइक बट स्टिल व्हाई डू व्हाट डू यू वांट टू आस्क? I was just calling to remind you about a webinar that you registered for yesterday on Facebook at about 5:30 p.m. And ओके, I was just calling my customers and trying to figure out and remind them how to attend the webinar on Saturday and trying to understand who they are and where do they come from. योर रिमाइंडर्स आर ऑलरेडी कमिंग नो ऑन मेल एंड ऑल, सो प्लीज डोंट बॉदर मी। Okay, that's perfectly all right, Pankaj. Have a great day. थैंक यू। हाँ। हाँ तो इससे मुझे लोगों को ये समझाना ऑडियंस को कि कोई ऐसा आपका गला दबा के गला जान नहीं मार रहा है, मतलब कॉल किया तो अब उसको बात करके खत्म करके रख दो, कितना कितना ही लगा, मतलब 1 मिनट का बात हुआ खत्म हो गया, 1 मिनट भी नहीं हुआ, 10 सेकंड जितना में कॉल आप खत्म हो गया। जितना रूड बनना चाहो बनो, मेरे को तो पता है ना, मुझे फोन या तो आपके साथ बात करनी है या तो फोन रखना है। हम्म। आप डिटरमाइन करोगे कि मैं कितना ज्यादा बात करूंगा। यस। तो अगर ऐसा ऐसा मान लीजिए लोगों का पर्सपेक्टिव आ जाए, ये रैंडम हम्म। थॉट, कि जो सेकंड कॉल किए आप, हाँ, हो सकता है ये अच्छा कस्टमर बन सकता था, ऑफ लेकिन कोर्स आप कॉल बनेगा। करके परेशान कर दिए उसको, इसलिए वो चला गया, ऐसा भी हो सकता है क्या? आ, देखिए, अगर इतना लेवल तक सोचने जाओगे ना तो परेशान हो जाओगे। हो सकता है सही बात है। पंकज, हो सकता है जो दूसरा कॉल वाला पंकज था वो मेरा बेस्ट कस्टमर बनेगा, सिर्फ आज हाँ। उसका दिन खराब था, मूड खराब था।
और उसके वजह से वो अब हमसे गुस्सा हो गया, हमको ब्लॉक करके छोड़ दिया कुछ भी, बट वो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप क्या ही जो आप फर्क बोले। पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। एक यस। कस्टमर जाएगा, दो जाएगा, 10 जाएगा, 100 जाएगा, आपके पास 10 लाख आने वाले हैं आगे जाके। हम्म। और आपको, मतलब मेरा कॉलिंग का पर्पस ये रहता है कि अगर हम 100 लोगों को कॉल कर रहे हैं, 100 में से 5 लोगों से क्वालिटी कॉल बात हो गया, मेरा 5 लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिए, कुछ भी फीडबैक ले लिए, तो माई जॉब इज डन। करेक्ट। फोकस, ये हमेशा मैंने पहले 2-3 बार भी बताया हुआ है, ये मैं स्टैंड अप कॉमेडियन से सीखा हूं। फोकस ऑन द पीपल ऑन द सीट्स, डू नॉट फोकस ऑन एम्प्टी सीट्स। जितने लोग आपके सामने बैठे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जितने लोग आपके साथ बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जितने लोग आपका ऐड देख के आपको अपना ईमेल दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं दे रहे हैं, जो लोग फोन नहीं हम्म। उठा रहे हैं, जो लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको कंफर्मेशन देने के बाद में भी वेबिनार पे नहीं बैठ रहे हैं, जो वेबिनार स्टार्ट करके अपना क्या बोलते हैं ऑफर तक नहीं बैठ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ट्रू। इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। हाँ, वो भी है। तो ये भी माइंडसेट वाला बात है कि उनसे क्या ही करना, जो है ही नहीं ऑडियंस, जो चेंज ही नहीं कर सकते आप, तो उसका सोच के आप पूरा, तो पूरा वेबिनार चेंज नहीं कर सकते हो ना। करेक्ट। आपका काम वैसे भी लोगों को चेंज करना थोड़ी, आपका काम है कि जो लोग आपके साथ रेजोनेट करते हैं उनको अपनी कम्युनिटी में लाना। क्योंकि अगर मेरा बैड डे था तो हम्म। ठीक है, लेकिन पता चला कि अगर मेरा एटीट्यूड ही ऐसा रहता, हमेशा गुस्सा में रहते, ये रहते, तो फिर तो आपको उल्टा अच्छा डिसाइड है। करना कि क्या, तो फिर वो तो उल्टा अच्छा है कि आपने मेरा फोन रख दिया, और अच्छा है आप मेरे वेबिनार अटेंड में नहीं आने से करोगे। पहले ही आप मेरे लिस्ट में से निकल गए। हम्म। हाँ, वरना फिर इस तरह के लोग जो गुस्सा रहते हैं या फिर जो एटीट्यूड खराब है बिना रीजन का, तो फिर उसको आप अट्रैक्ट करोगे। मैं डिट्रैक्ट करूंगा, दूर भागो। यस। तो हाँ। टोटल हम लोग ये समझ लिए मनीष जी, आई होप ऑडियंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो कि टोटल इनसाइट्स मिला उनको, डेमो करके भी दिखाया। पहले तो हम लोग डिस्कस किए कि शॉप कैसे फिक्स करते हैं, हम्म। फिर उसके बाद हम लोग कॉल का फायदा नुकसान डिस्कस किए, और फिर फाइनली डिस्कस किए मॉक कॉल के साथ कि कैसे कॉल करना है। और अगर बैड कस्टमर भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका टाइम ही बच रहा है। शुरू में 10 मिनट लगा, तो अभी ऐसा ऐसा 10 कस्टमर मिल जाए तो आपका जल्दी जल्दी टाइम बच जाएगा। करेक्ट। और एक अगर आपको चाहिए तो मैं एक बहुत छोटे, मतलब बर्ड्स आई व्यू से आपको एक छोटा सा स्क्रिप्ट या एक लेआउट दे देता हूँ हर कॉल का। जैसे ही आप फोन उठाते हो, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, थोड़ा बताओ कि ठीक है ये पर्टिकुलर कंपनी या ये ब्रांड से बात कर रहे हो, इस कारण से बात कर रहे हो कि आपने कल आपने रजिस्टर किया था वेबिनार के लिए, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले उनसे थोड़ा पूछिए कि वो हम्म। कौन है, क्या करते हैं, क्या उनके पास टाइम है। हर जगह पे परमिशन जरूर लीजिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये सब मुझे बहुत नेचुरली आता है क्योंकि मैंने इतने कॉल्स किए हुए हैं। जैसे ही पंकज ने मुझे बताया कि पहले उन्होंने क्या बताया, वो पिज्जा खाने के लिए बैठ चुके हैं, तो मैं लगा यार हम्म। मैं डिस्टर्ब क्यों करूं, अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो मैं 15 मिनट के हम्म। बाद फोन कर लूंगा, 20 मिनट के बाद फोन कर लूंगा। फिर उन्होंने खुद बताया नहीं मैं वेट कर रहा हूँ। और ये बहुत हम्म। बार होगा। पब्लिक को समझ में नहीं आता है कि आप जैसे ही वो बोलेंगे कि वो खा रहे, तो आप बोलोगे मैं फोन रख देता हूँ, उनको लगता है कि वो आप और बात करोगे। ठीक है ना, हम्म। तो आप इंट्यूटिवली जब आप थोड़ा भी ऐसा ह्यूमन टच दे देते हो कि ठीक है मैं 15 मिनट के बाद फोन करता हूँ, तो उल्टा आपकी रिस्पेक्ट सबकॉन्शियसली बढ़ जाएगी। तो हम्म। इंटरैक्ट करो, समझो उनसे, बात करो। फिर उनको पता करो कि ठीक है उन्होंने क्या देख के रजिस्टर किया। इतने एड्स देखते तो आपके एड में उनको क्या अच्छा लगा, उनका पेन पॉइंट समझने की कोशिश करो। फिर उनको कोई ना कोई सोशल मीडिया का कंटेंट रेकमेंड करो ताकि वो आपको और सोशल मीडिया और आपका एक और टच पॉइंट बढ़ जाए। वेबिनार में आने के पहले आप, हो सकता है आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ जाए, हो सकता है आपको एक लाइक मिल जाए, हो सकता है आपको एक कमेंट मिल जाए। फिर उसमें आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपकी जो लीड है वो क्वालिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हम्म। और उसके बाद में फिर उनको एक रिमाइंडर दीजिए, उनको एक एंड में एक स्माइल दीजिए, उनको बोलिए कि आपका कॉल बहुत अच्छा रहा, गुड गुड इवनिंग, गुड नाइट, एंजॉय योर मील, मजे करो, सैटरडे को मिलते हैं, ये बोल के फोन रख दीजिए। यस। और ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा धीरे धीरे, मतलब ये बेसिक सब स्क्रिप्ट दिए, और स्क्रिप्ट देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग इंटरेक्ट करके उससे खाली फीडबैक ले रहे हैं, करेक्ट। रिमाइंड कर रहे हैं, वो अपने आप कॉल करने लगेगा, 2 4 10 कॉल करेगा तो अपने आप होने लग जाएगा। अरे बहुत इजीली हो जाएगा। एंड ये लॉन्ग टर्म में इसका फायदा इतना है ना कि आप खुद सोचते रहोगे यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। यस। क्योंकि कहीं पे भी हर जगह आपको मतलब फिर ये तो रिपीट हो जाएगा, मतलब हर जगह आपको वो मिलेगा, लर्निंग,
कॉल पे, हर चीजों के लिए, ऐड के लिए लर्निंग मिलेगा, लैंडिंग पेज के लिए। जैसे इस कॉल में, आपके कॉल में हम हाईलाइट किए थे, अच्छा हाँ आपका टॉपिक ही था ना मनी माइंडसेट वेबिनार, कुछ उस टाइप का हाँ, हम बात किए थे, तो आपके मन में चला गया होगा हाँ ये टॉपिक भी देखा था, टॉपिक लोगों के दिमाग करेक्ट, में काम कर रहा है। फिर आप करेक्ट। मैच करोगे कि मैं अच्छा ऑडियंस हूँ कि नहीं बेस्ड ऑन माय थॉट्स, तो हाँ ये अच्छा ऑडियंस लगा और इसका टॉपिक वगैरह अच्छा लगा, तो आप वहां डाल दोगे एंट्री में अपना डेटा जहाँ पे भी रख रहे हो कि हाँ ये अच्छा ऑडियंस था। फिर आप मुझे कंपेयर करोगे कि इस नेटवर्क से आया था ये, तो चलो ये लोगों को करूंगा एक और मैं, बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अभी, हम्म क्योंकि पंकज ने इतना अंडरलाइन किया तो मुझे एक बात याद आई। एक सिंपल चीज का बहुत ध्यान देना। अब मैंने पंकज के साथ बात की, सैटरडे को 6 बजे मेरा वेबिनार चालू हुआ, 6:05 पे पंकज एंटर करते हैं रूम में, ठीक है। हम्म जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं और आपको पहले कमेंट करते हैं ना जूम पे, उनको अक्नॉलेज जरूर करना। हे पंकज, रियली गुड टू सी यू हियर, आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू ऑन अ कॉल। आपने जैसे ही ये बोल दिया ना, उनका कनेक्शन आपके साथ और स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, इसको याद है इन्होंने मेरे से बात की थी, इनको याद है कि मैं आया हूं, ये इतना ध्यान दे रहे हैं, भले वेबिनार के बीच में लेकिन और ध्यान दे रहे हैं। ये है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये और नेचुरल होता जाता है। और जितने भी टच पॉइंट हुए, ये टच पॉइंट एज अ वर्ड को याद रखिए, जितनी भी बार पंकज को आप इन अ वे इमोशनली टच कर पा रहे हैं ना, एक स्माइल दिला पा रहे हैं, आप उसको कुछ सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, एक कमेंट करवा रहे हैं, हर टच पॉइंट से फर्क पड़ता है परचेज हम्म डिसीजन। यस। और ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेन ज्यादा फोकस करना है हम लोग को, फर्स्ट हाँ, 10 वेबिनार, 20 वेबिनार्स, 30 वेबिनार्स में जितना पॉसिबल हो पाए। फिर उसके बाद हो सकता है आपको कुछ टाइम मिलेगा भी नहीं कॉल करने का, तो मे बी आप टेलीकॉलर से करवा रहे हो कॉल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी चीजें जगह पे बैठ जाती है, लेकिन आपको सीखने को हमेशा मिलता रहेगा। यस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे प्री वेबिनार का। हम्म। अब इसी तरह से हम लोग बात कर लेते कि अब वेबिनार अटेंड कर लिया है 100 लोग, हम्म। 100 में से पता चला कि 3 ही लोग बाई किया। मान के चल रहे 400 लोग रजिस्टर किया था, 400 में से 100 अटेंड किया, 25%, और बाई किया 3 ही लोग 100 में से, हम्म। तो 3% कन्वर्जन फ्रॉम अटेंडीज हुआ है। तो ये तो कम बहुत ही ही हुआ बुरा है। नंबर। हाँ, हाँ। हाँ, होना चाहिए अराउंड, कितना होना चाहिए, 10-12% होना चाहिए मिनिमम। हाँ, 10 मिनिमम, 12 आइडियल, 15 गुड, 20 आउटस्टैंडिंग। हम्म। तो 15 के ऊपर कुछ भी आउटस्टैंडिंग। ठीक है। तो लोगों को आउटस्टैंडिंग का तो एक्सपेक्टेशन बहुत कम रहता है, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट अगर नॉर्मल भी चला जाए, 3 से 10 भी चला जाए, तभी आई थिंक उनका वेबिनार बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। करेक्ट। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसका कॉल कैसे किया जाए, उसमें जब हम लोग जैसे मान लेते 100 लोग अटेंड किया, 100 में से हो सकता है लास्ट तक, जो एकदम इवेंचुअली लास्ट तक जब आप ऑफर पिच किए थे, उसके बाद आपका मे बी 50 लोग वेट किया, हम्म। बाकी 50 लोग बीच बीच में धीरे धीरे एग्जिट करते गया। ठीक। बट आपके पास आपका ऑफर जो, 50 लोगों ने देखा, 3 लोगों ने बाय किया। यस, तो 6% कन्वर्जन काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप नहीं, नहीं, उसको। मैं उसको गिनूंगा, यही अपना 3% 3%, कन्वर्जन। आपका ठीक जो है। क्या होता है, जब आप वेबिनार स्टार्ट करते हो तो हाँ। 100 लोग नहीं आएंगे। आप वेबिनार जब आपने स्टार्ट किया तो होंगे 40-30 लोग, वो थोड़ा थोड़ा। हम्म 6 बजे के वेबिनार में पीक ऑडियंस पकड़ता है, समझ लीजिए 6:15 और 6:30 के बीच में, यस, क्योंकि इंडिया है। आपके इंट्रोडक्शन के बाद। हम्म आपके इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही आप अपना मेन कंटेंट चालू करते हो, मैं एक उसको पीक पकड़ता हूँ, और बाद में अगर थोड़ा और नंबर बढ़ता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम्म बट मैं उसको पीक पकड़ूंगा 100 में से अगर 50 लोग ड्रॉप हो रहे हैं मेरे ऑफर स्टार्ट करने तक, तो 10-15% समझ में आता है। किसी को कॉल आ गया, किसी को कोई दूसरी इमरजेंसी आ गई, किसी का इंटरनेट खराब हो गया, वो सब चलता है। लेकिन अगर हम्म मेरा 100 लोग में से ऑफर तक सिर्फ 50 लोग बैठ रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। Which मतलब means, आपका वेबिनार बोरिंग लग रहा है लोगों को, या फिर वैल्यू नहीं मिल रहा है। correct, which means I need to work on my webinar script. I need to make my webinar better. I need to change my webinar content और context. तो वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। 100 में हम्म से 80 लोग तो मिनिमम आपके ऑफर तक खड़े होने ही चाहिए। ठीक है। तो अब मान लेते हैं इसको केस चेंज कर देते हैं कि आप ये आपको पता चल गया इश्यू आ रहा था, 2-3 सप्ताह तक आप मेहनत किए, वेबिनार फिक्स हो गया। हम्म। अब हो रहा है कि 100 में से 80 लोग वेट कर रहे हैं, परफेक्ट। वो आपका ऑफर भी सुनकर चले गए,
80 में लेकिन से भी सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा है, मैं अभी हाँ। भी उसको 3% ही पकड़ूंगा। हम्म 80 लोग आपके ऑफर तक रुकते हैं, ये अच्छी बात है। हम्म लेकिन आपको 80 के ऊपर परसेंटेज नहीं गिनना है, आपको हम्म, पीक के ऊपर ही परसेंटेज गिनना है। तो अभी ठीक है। तक 3% कन्वर्जन है, आपको कम से कम 10 लोग तो आने ही चाहिए। 12 लोग अच्छी बात है, 15 लोग तो मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है। तो एक तो ये है, और इसको थोड़ा हम लोग नंबर इनफैक्ट कम भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल उनके लिए हो गया जो ऑलरेडी कर रहे हैं वेबिनार, हाँ, क्योंकि 100 लोगों को लाने के लिए भी पैसा लगता है उसमें। करेक्ट। स्टार्टिंग में मे बी 30-40 लोग या फिर 20-30 लोग जनरली आते हैं वेबिनार पे। करेक्ट। तो उसमें से मान लेते फॉर एग्जांपल, और वर्स्ट केस ले लेते, स्टार्टिंग ही किया है लोग वेबिनार, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 1000 रुपया पर डे ये इस टाइप का बजट लगाता है लोग। तो हम्म। मान लेते कि 20 लोग उनका ऑफर सुना हम्म। और कोई बाई नहीं किया। हाँ। तो पहले तो ये बताइए कि 20 लोग ऑफर सुना, तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ 20 लोग सुना तो 80 लोगों को सुनना चाहिए था, नंबर ज्यादा होना चाहिए था, तभी बाय नहीं, होगा। नहीं, एवरेजेस जनरली सेम ही काम करती है। अगर हम्म 20 में से 2 लोग नहीं खरीद रहे हैं, 3 लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो 100 में से भी 10 लोग नहीं खरीदेंगे। हम्म तो वो बहुत रेयर हो जाता है ना कि, बट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि जैसे मान लेते कि 100 में से 10 खरीदता है, हाँ। मतलब 90 नहीं खरीदता है। हाँ, तो उस 90 में से वो 20 लोग आ जा चुका था जो नहीं खरीदने वाला था। ये है ना अगला खुद, वेबिनार में भी ये हो रहा था। ये खुद को दिलासा देने का तरीका है, ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। मतलब ये खुद को, कितने लोग होते ना बोलते मुझसे तो गलती नहीं हुई, गलती भगवान से हुई, गलती मेरे पापा से हुई, गलती मेरे चाचा से हुई, गलती मेरे वॉचमैन से हुई, धोबी से हुई, ये वो वाले लोग हैं। भाई हम्म तुम्हारा वेबिनार है, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, गलती तुमसे हो रही है। यस, ठीक है। और ये एक बार हो गया, चलो ठीक है, अगर लेकिन 3-4 वेबिनार कर बार भी लिया। नहीं, एक बार भी नहीं सी होता क्या है ना, हम्म पब्लिक को समझ में नहीं आता। कभी आपकी एनर्जी गलत है, हम्म कभी आप डेस्परेट साउंड कर दिए, कभी आपने कुछ तो गड़बड़ किया, कभी आपकी वेबिनार की स्क्रिप्ट टाइट नहीं हुई है, कभी आपके वेबिनार के स्लाइड्स में गड़बड़ है, कभी आप लोगों के साथ इनफ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो। बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं। आपको ध्यान देना है कि कौन से स्क्रू को टाइट करने की जरूरत है। तो देखते रहो, समझते रहो, क्या सही था क्या गलत था, क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, गॉट इट। और इस हम्म। पे हम लोग डिस्कस भी किए पहला 2 हाँ, एपिसोड, हाँ, व्हाई वेबिनार्स फेल। हाँ, तो इनफैक्ट 4 घंटे का लगभग वो एपिसोड है, पार्ट हाँ, वन 2 पार्ट टू। पार्ट्स में, हाँ। हाँ। तो ऑडियंस जो इस चीज को और डिटेल्स में समझना चाहते हैं, तो आप लोग जाके वो वेबिनार्स देख लीजिए। हम लोग का कुछ 17-18 करके एपिसोड होगा या फिर आगे पीछे होगा, आप देख लेना। हम्म। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि 20 लोग, मैं वेबिनार आज कर रहा हूँ, हम्म। 20 लोग देखा, बट एक भी सेल नहीं हुआ। अब हम्म। मुझे लोगों को कॉल करके फीडबैक लेना है कि एग्जैक्टली क्यों सेल नहीं हुआ। तो अब हम कैसे कॉल करें? सबसे पहली बात तो अपना माइंडसेट को बना लो हम्म कि आपको कॉल करना ही करना है। दूसरा चीज आप समझ लो कि ये ऐसे बंदे हैं जो आपका नाम सुन के बहुत खुश नहीं होने वाले, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनको भी स्पॉट में डालने वाले हो। हम्म तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप ये सेल्स कन्वर्जन के लिए फोन नहीं कर रहे हो, ये आप फीडबैक के लिए फोन कर रहे हो। और अगर सेल्स कन्वर्जन हुआ तो ये बोनस है। ये हम्म सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने जैसे ही फोन उठाया सामने, ये आपने खरीदा क्यों नहीं, अगर आपने ऐसा एक छोटा सा भी डेस्परेशन दिखा दिया, तो समझ लो आप फेल हो गए। हम्म और इसमें आप नहीं फेल हो रहे, आपका ब्रांड फेल हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात है। इस फोन में सेंसिटिविटी और इस फोन में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो मान लेते वो हम समझ गए कि ठीक है, मुझे खाली कॉल करते समय बेचना ही नहीं, इस पर्पज से कॉल करना है ताकि मैं नेक्स्ट वेबिनार उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। करेक्ट। ठीक है। तो हम लोग कॉल कर ले क्या, मॉक कर ले, या फिर पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर ले? नहीं, मतलब मॉक में ही आधा से ज्यादा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फिर समझ में आ जाता है। अगर आपको चाहिए तो स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपको नहीं, ठीक तो लगे। कॉल ही कर लेते हैं पहले। हाँ। तो मान लेते हैं वापस आप ही कॉल कर लीजिए, मैं वापस से कस्टमर बनता हूँ। हाँ। और ठीक है, मैं कस्टमर बनता हूँ, और मैं गंदा कस्टमर बनूंगा, मतलब थोड़ा हार्ड कस्टमर, गंदा नहीं हार्ड। मैं आपको फीडबैक दूंगा ही नहीं, आप फीडबैक निकालने की कोशिश करिए जबरदस्ती। नहीं, मेरे लिए कोई गंदा कस्टमर हो ही नहीं सकता। आपने नहीं खरीदा, नहीं खरीदा। नहीं, गंदा ही इसलिए कि मैं फीडबैक ही नहीं दूंगा। कॉल करने का पर्पज से फीडबैक लेना ना कि कैसा।
हाँ तो फिर गया ठीक है, वेबिनार। जैसे पहली बार हुआ 1 मिनट में मैं फोन रख दूंगा, देख लो आप कैसे होता है। ठीक है, चलिए हाँ फिर मैं अच्छा कस्टमर बनता हूँ। नहीं पहले देख लो मैं ना। समझ गया, हाँ नहीं ठीक है, पहले पहले दोनों गंदा ट्राई कस्टमर, करते हैं। हाँ तो पहले यस, गंदा कस्टमर है आपके हिसाब से, जो गंदा कस्टमर है जो फीडबैक देने के लिए ओपन नहीं है वैसा कस्टमर। हाँ मतलब गंदा नहीं है, मतलब ठीक है, हम 2-3 वैरायटी ट्राई कर लेंगे चलो फटाफट। ठीक है, आप मुझे रे- बोलते जाओगे मेरे हाँ, पास एक और कस्टमर है तो फोन करो, एक और कस्टमर है फोन यस करो, यस, आ जाऊंगा। लेवल नहीं देते कि कस्टमर हाँ गंदा है कस्टमर खराब है, वो हाँ, इग्नोर करते हैं। वो होता ही नहीं है। वही ठीक है वही। ना। फिर हाँ वापस वही वाला माइंड सेट हो गया कि वेबिनार खराब है, बट हम लोग वेबिनार को ब्लेम कर रहे हैं कि कस्टमर गंदा है। कस्टमर करेक्ट। नहीं, कस्टमर बाय नहीं किया। इनफैक्ट अभी भी यहाँ पे भी मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो अभी आप शुरू में ही बोले थे कि माइंडसेट अच्छा रखना है। हम्म। तो जब कॉल कर रहे तो वो अच्छा कस्टमर है, वो बात करेगा, मेरे को फीडबैक देगा। करेक्ट। तो वो फीडबैक के लिए हम कॉल कर रहे हैं, तो कस्टमर का गलती कहाँ है? एग्जैक्टली। कस्टमर तो मुझे हेल्प कर रहा है ना कॉल करके, वो टाइम देकर। हाँ सो आपको जैसा बनना है आप वैसा बनिए। ठीक आप है, जितने बोलोगे मैं उतने मॉक करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं अगर सामने वाले को फोन करता हूँ तो मैं कैसे बात करता हूँ या कितना लंबा बात करता हूँ, डिपेंड करता है उसके एनर्जी के ऊपर, मेरे एनर्जी के ऊपर नहीं। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग वही रख ले, कि आप ही का आप वेबिनार अटेंड किया था। आपने हाँ आपने मेरा वेबिनार अटेंड किया एंड फॉर सम रीजन यू डिड नॉट बाय, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट कुड आई हैव डन बेटर। ठीक है, ट्रिंग तो ट्रिंग। हेलो। Hey, good evening, Pankaj. Manish Ahuja here from Paycheck to Profit. Is this a good time to talk to you? कौन मनीष आहूजा? आपने कल एक वेबिनार अटेंड किया शाम को 6 बजे जूम पे, मनी माइंडसेट के ऊपर। शाम को 6 बजे? हाँ वो याद आया, याद है, लाइक थोड़ा जल्दी हम चले गए थे, पूरा पूरा अटेंड नहीं कर पाए थे। हाँ तो मुझे आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब आई as I can see in my report you attended about 20 minutes, so हम्म could you not attend entirely because there was some issue, or did you not like the content, did you not understand what could नहीं, आई थिंक, मतलब मुझे लग रहा है कि वो मैं रेजोनेट नहीं कर पा रहा था, मतलब उस टॉपिक से मुझे लगा कुछ और था वेबिनार। आप अच्छा। सिखाओगे कि पैसे कैसे कमाना है वो सब, हम्म। बट आप वहाँ पे माइंडसेट का बात कर रहे थे, तो माइंडसेट मुझे नहीं कमाना है, अभी मुझे पैसे कमाना है। Makes sense, makes sense. Okay, that's fair. I am very happy that you are giving me this feedback. Although I'll be very honest with you, whatever you're looking for with regards to how do you earn more money or how do you manage your money better is something that I cover in my second level or the third level. It's okay, you could not attend or you're looking for something else. What I can do is, please stay connected with me on social media, because at least on my YouTube channel and Instagram, I keep creating a lot of content on financial literacy. So even if you don't want to be associated with the money mindset aspect of it, maybe you will get more value out of my free content on YouTube and Instagram. Is that fair? हाँ, तो वहाँ पे आप सोशल मीडिया में बताते हो क्या कि क्या बाय कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक कौन सा सेल करे, उस टाइप का कुछ टिप्स वगैरह देते हो क्या? That's not the kind of business that I run. On Paycheck to Profit, I will never give you recommendations. चलिए ठीक है, रखता हूँ फिर। ओके, Thank you so बाय। much. ठीक है, ये एक कॉल हो गया, फिर सेकंड हाँ, करते हैं। यहाँ पे कस्टमर को या इस लीड को मेरे सर्विसेज की, मेरे ब्रांड की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं है तो मैं जाने दूंगा। हम्म तो ये आपको पता चला कि, तो इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं इस चीज के लिए कि कुछ नहीं, अग- कुछ नहीं, आप बेचते हो लाल कलर की साड़ी और सामने हम्म वाले को पीली कलर की साड़ी चाहिए, तो आप उनको थोड़ी पीली कलर की साड़ी पहनाओगे, ढूंढने दो हम्म उसको लाल कलर की साड़ी जाके मार्केट में। ठीक है। और मेरे तरफ से मुझे ये रहेगा कि अगर ऐसा ऐसा कॉल लगातार आ रहा है, मतलब 100 में से 40-50 कॉल ऐसा आ रहा है, तब वो हमारे तो लिए डेंजर साइन है। वो आपको अपना एड चेंज करना है, आपको अपना मैसेजिंग चेंज करना है, आपको बहुत कुछ ट्वीक करना बट पड़ेगा। बहुत लोग आ रहे हैं तब, 100 में से हाँ पांच हाँ सात हाँ, दस लोग आ रहे हैं, ओ तो नहीं नहीं इग्नोर नहीं, करना है। अगर 100 में से 20 के ऊपर 30 के ऊपर ऐसे लोग आ रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। हाँ। ठीक है ना, मतलब ऐसे 100 में से दो तीन तो कोई फर्क भी, पांच भी फर्क नहीं पड़ता है, 10 भी फर्क नहीं पड़ता है फॉर दैट मैटर फैक्ट। हम्म 10 पे मैं सोचने लगूंगा यार ये क्या हो गया इस महीने, हम्म क्यों ऐसे लोग आ रहे यस, मैं ये क्वेश्चन क्यों लेकर आ रहा था यहाँ पे, हैं? क्योंकि हाँ मेरे क्लाइंट्स ये करते कि दो लोग से बात हुआ, हाँ। बोले कि नहीं वो ऑडियंस क्वालिटी अच्छा नहीं था, लीड क्वालिटी अच्छा नहीं था, ये था, तुम टोटल टोटल कितना कॉल हुआ? 10 कॉल किए, हम्म 40 में से 10 कॉल किए। हम्म तो बोले 10 कॉल किए, उसमें से दो लोगों, बाकी लोग क्या बोला, बाकी लोग फोन नहीं उठाए थे। तो अच्छा, आप तो बात टोटल ये दो ही कॉल किए, दो में से पूरा क्वालिटी जज कर रहे हो?
तो फिर वो गड़बड़ हो गया। तो हम लोग को ये भी माइंडसेट में रखना है कि ज्यादा लोगों को कॉल करना है और बड़ा फीडबैक पे काम करना है। थोड़ा करेक्ट। थोड़ा कहीं भी मिल जाएगा एक दो इधर उधर, तो उसकी वजह से अगले दिन पूरा वेबिनार ही नहीं चेंज कर देना है। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, मुझे लग रहा है लोगों को इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट सीखने का, मनी माइंडसेट नहीं इंटरेस्ट है, अगला दिन से वेबिनार चेंज। बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं। ठीक है। तो चलिए वापस से कॉल करिए, अभी दूसरा ठीक है, कस्टमर मुझे आ नहीं रहा है। पता मैं किस कस्टमर को और कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है आप किस माइंडसेट से मेरे साथ हाँ, मैं बात भी कर रहे रैंडमली 3 4 कॉल छोटा छोटा कॉल करूंगा। हैं। हाँ और हाँ, मैं राजू जितना हूँ। छोटा हो या बड़ा होगा वो मेरे ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सही बात है। मैं ठीक राजू है हूँ। ना? ठीक है, जो भी है, मैं पंकज हाँ ही बोलता रहूंगा। और ठीक है, राजू ठीक ना, है। तो राजू से हाँ, बात करता हूँ। अब ठीक राजू है। से बात करिए, अलग कॉल है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। Hey, good evening, Raju. Manish Ahuja from Paycheck to Profit. Is this a good time to talk to you? या हाय मनीष, आई रिमेम्बर आई अटेंडेड योर वेबिनार। सो आर यू दैट मनीष जिसका कल वेबिनार था? Yeah, yeah, I'm the same guy. How are ओह you doing, ग्रेट ग्रेट। Raju? आई एम डूइंग ग्रेट। Okay, so how's your day been? I'm sorry, I am just calling you randomly, but I saw that you attended my webinar. You were in the room for about 30-40 minutes, and I just wanted to understand how was your experience? सर आपको वेबिनार क्या पता है, मतलब मजा ही आ गया, पूरा अच्छा लगा वेबिनार सुनकर। Mm-hmm. इसलिए तो मैं डायरेक्ट पहचान लिया आपको कि मनीष है। हाँ, तो मनीष वही होंगे शायद, कि कल ही वेबिनार अटेंड किया तो मतलब पूरा ही मतलब कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया पूरा, एक ही वेबिनार में पूरा ही मजा आ गया कि आप जो बता रहे थे ना, 3 4 मनी ब्लॉक्स के बारे में एग्जांपल्स दिए थे। 100% Mm-hmm. तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ Mm-hmm. वो सब 3 4 जो एग्जांपल्स दिए थे उससे मैं पूरा कनेक्ट कर पा रहा था। और जो That's आप nice. टेस्ट लिए थे ना, एक पूरा 11 Uh-huh. क्वेश्चंस वाला, तो Uh-huh. उसमें मुझे थोड़ा लगा कि हाँ ये रेटिंग तो खराब गया मेरा, बट सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो लगा कि हाँ जरूरी है वो चीज। That's nice. That's nice. I really like the fact that you actually resonated with so much of my content. Um, and you also, I would appreciate the fact that you are honest enough to tell me that your rating for your money mindset quiz was not good, but that's perfectly okay. That happens. That is exactly why you were even in the webinar room यस। and why you attended the webinar to begin with. So I would like, if you don't mind me asking, Raju, if हम्म। you saw so much and if you realize that there are so many gaps, what made you not want to consider buying the membership? ये बाय करेंगे, मैं सोच रहा हूँ अभी बाय करेंगे। And सोच what के is बताऊंगा। stopping you? मतलब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मतलब बस देख रहे कि ये है मेरे को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। अच्छा, कब तक सोच पाओगे आप? आपको कुछ अंदाजा है, या आप अगर बोल रहे हो कि आप सोचकर बताओगे, तो मैं हम्म। तो आपको हर बार फोन करने वाला हूँ नहीं, या आपको और कोई ऑप्शन तो मिलने वाला है नहीं। जो हम्म। मैंने आपको कल बताया था कि वेबिनार में एक लिंक दूंगा मैं, ये तो मैं वैसे ही थोड़ा फीडबैक लेने की कोशिश कर रहा था ताकि समझ सकूं कि। नहीं, बहुत बढ़िया था सर, आपका वेबिनार बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मतलब हाँ। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इतना सब सही होते हुए भी अगर आपको समझ में भी आ रहा है कि आपको हम्म। नीड भी है इस चीज की, फिर भी आपको क्या रोक रहा है? इज देयर समथिंग दैट आई कैन डू टू मेक योर बाइंग डिसीजन इजियर, बेटर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ, मैं डिसीजन लेके आपको बताता हूँ, सामने से मैसेज करता हूँ 1 2 दिन में। Unfortunately, that will not be an option, Raju, because I'll tell you something very honestly. If I say that the link is active only for the webinar, it will remain active only during the webinar. This is just a हम्म। feedback call to understand if there is something that went wrong from my end, or if there is there is a question that you did not get an answer to, or if I can give you more clarity. नहीं नहीं, आप क्लैरिटी तो पूरा मतलब बताए ना आपका, मतलब बाय नहीं कर रहे वो अलग बात है, बट प्रोग्राम आपका जो पूरा वेबिनार था एकदम मजा आ गया सुनकर, Okay, काफी अच्छा लगा था। तो मैं पहले उन वो सब फिक्स कर लेता हूँ जो 3 4 चीज सीखे पहले, वो सब mm-hmm. माइंडसेट में फिक्स कर लेता हूँ पहले। Great. फिर I मैं भी फ्यूचर में कभी I विल। would be the happiest to know that you can manage to change your money mindset or get eliminate even one money block. Could you, if you have some 2 4 minutes more, could you tell me one money block that you identified for yourself? हाँ, अभी तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट जो नॉट नेसेसरली मनी ब्लॉक, या अगर आपको कोई मनी माइंडसेट को लेकर कोई चीज आपको समझ में आए कि हाँ ये मेरा एक गैप है, आई वुड लाइक टू ब्रिज दिस गैप। हाँ मुझे वो वाला 11 पॉइंट का जो आप वो बता रहे थे ना, हाँ पिरामिड हाँ। टाइप का कुछ था, वो जो रेटिंग वाला सिस्टम था। हम्म तो मुझे लगता था कि अच्छा ये 3 4 ही चीज होता है मनी हम्म माइंडसेट में, बट पता चला अच्छा ये 11 चीज का चीज होता है, करेक्ट। खाली 3 4 चीज नहीं है। हाँ। तो मैं अभी सिर्फ 4 5 चीज पे फोकस करता था।
अब मैं क्या करूंगा कि वो टोटल 11 चीजों पे धीरे धीरे करके फोकस करने लगूंगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो एक बात बताइए मुझे राजू, आपको कल शाम तक तो पता भी नहीं था कि आपको 5 चीजें पता ही नहीं है। हाँ। टोटल 10 चीजें हैं, उसमें से आप 5 पे फोकस कर रहे थे। आपको तो हम्म। 5 के बारे में पता भी नहीं था। तो जो चीज हाँ, के एग्जिस्टेंस के बारे में आपको पता नहीं था या आपने सोचा नहीं था, आप उसको अभी कैसे फिक्स करोगे? सर्च कर करके थोड़ा सा यूट्यूब से थोड़ा सर्च कर लेंगे इधर उधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपने शायद मेरा पूरा वेबिनार अच्छे से सुना नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ट्रायल एंड एरर एक मेथड है, लेकिन उस ट्रायल एंड एरर में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। हो सकता है आपको राइट इन्फॉर्मेशन ना मिले, हो सकता है आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत हो सकता है आपको एक कम्युनिटी की जरूरत हो जो आपको नहीं मिलेगी। तो ये हम्म। सारी चीजें वैसे मेरा जो प्रोग्राम है वो सब फिक्स करता है। बट अगर आप फिर भी ट्रायल एंड एरर करना चाहते हैं तो हो सकता है आप मेरे राइट ऑडियंस मेंबर नहीं है, या आप यू आर नॉट इन द राइट headspace to even become a part of the community at the moment, which is perfectly all right. The हम्म। idea is I'm anyway trying to look for serious people who want to do something about their money mindset on ASAP basis, or not people who are okay to make a few more mistakes, end up spending more money in trying to resolve whatever situation that they are in. That's perfectly okay. uh, I would just like to tell you that the process that you are going through is the process that I've already gone through for myself, and it may end up costing you way more than the membership amount that you will pay me to become a member of the Paycheck to Profit community. But that's absolutely your choice. I can't force you into anything, right? यस। Hmm. ठीक है सर, तो रखूं कॉल? Sure. I have a last thing to tell you. जी। Because I identify that you definitely need this program, are हम्म। you open to making a decision to enter the community today? And I will respect both your answers, yes and no. So whatever नहीं, you अभी तो सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मतलब बताऊंगा Okay, बाद में। thank you so much, Raju. Please take care. Have a great time. Please stay connected on social media, though. You can always हाँ, get मैं value फॉलो from. करता हूँ ना आपको यूट्यूब में, कल ही मैंने क्लिक करके फॉलो कर लिया था आपका नाम सर्च Thank you करके। so much. I really appreciate that. Instagram पे भी जरूर follow कीजिए. ठीक है, ओके। Thank थैंक यू। you. ठीक है। तो क्या समझ में आया मनीष जी, इस कॉल से आपके लिए लर्निंग क्या था? मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं था, मतलब है, बट दैट पर्सन इज नॉट वार्म इनफ, दैट पर्सन इज नॉट रेडी इनफ, एंड आई वुड इन अ वे से दैट इज नॉट माय टारगेट ऑडियंस कैसे? बिकॉज they are not ready to make a decision despite going through my webinar, despite understanding that there is so much gap, despite understanding that they need to do something about their money mindset. If they still want to go through the trial and error method, which is going to cost them 10 times more than what they would pay me for the membership, that's their choice. हम्म। नहीं I feel sorry for people like these हम्म। because they are not understanding the cost of not enrolling into a coaching program, because they feel that every information is available for free. If they could have taken care of all of this by free, they would have. यस। तो इसमें मनीष जी, एज ए डिजिटल मार्केटर, जब क्लाइंट्स मुझे पूछेंगे कि क्या इस तरह के ऑडियंस को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं नहीं, कि, तो वो नहीं कर सकते हम लोग फिल्टर फेसबुक में। possible मतलब नहीं। लोग बोलते हैं मेरे क्लाइंट्स की कुछ बाइंग बिहेवियर वाले ऑडियंस लाओ, हम्म जो माइंडसेट में रखेगा कि बाय करता है। तो हम हम्म। लोग अनफॉर्चुनेटली फेसबुक में हम लोग नहीं फिल्टर कर सकते। तो किसी में भी नहीं कर सकते हो, आज तक ये हुआ ही नहीं है। यस, क्योंकि वो जरूरी नहीं है वो बाय कर रहा है नहीं कर रहा, हो सकता है ये राजू कुछ और बाय कर रहा हो, आईफोन बाय कर रहा हो, मैं वही लैपटॉप बोलने मैक्स वाला से था। अटेंड कर रहा हो। मैं वही बोल रहा था कि आप अपने क्लाइंट्स, यार आपके, आप है ना, आपके क्लाइंट्स को कोई अंदाजा नहीं है वो कितने लकी है कि उनके पास आप जैसा कंसल्टेंट है। उनके पास मेरे जैसा होता तो उनको लगता कि सारे कंसल्टेंट राक्षस है। नहीं, बट इन जनरल आप मान के चलिए, मतलब क्लाइंट एग्जांपल वर्ड हो गया, बट हाँ, मान कोई लीजिए भी कि इन किसी जनरल, के लिए भी अगर ये हो रहा है क्वेश्चन कि इट इज लोग नॉट फिल्टर कर रहे पॉसिबल। इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल बिकॉज लुक एट, आई टेल यू द हैं। सिंपलेस्ट वे टू लुक एट दिस. As a consumer, you are getting exposed to over 100-200 ads every day. Are you making 100 buying decisions every day? You'll go broke. नहीं, इनफैक्ट 100 क्या मान लीजिए, आई थिंक कुछ 7,000 का डेटा कहीं पे था, वंस आई रिमेम्बर। You will come across thousands of brands every day, यस but यस you will यस, come ट्रू ट्रू across ट्रू। hundreds of offers every day. 20% discount, 30% discount, new launch, stocks हाँ हाँ, करेक्ट soon. करेक्ट। ये सारे buying offers हैं. यस। You will come across thousands of brands. The moment you wake up and you look at your toothpaste ka tube, you're looking at a brand. The moment you pick up a toothbrush, you're looking at a brand. The moment whatever you're doing is somewhere associated with some sort of a यस product यस। or a brand.
मैं चश्मा पहनता हूँ तो मेरे चश्मे का एक ब्रांड है. So ठीक you है. wake up and you start looking into your phone, you're looking into a brand. You open an app, that is a brand. You open a email, that is a brand. In that email, you're getting 10 emails of other brands. यस. ठीक है. तो एक तो ये हो गया कि तो करना क्या है इस टाइप के कस्टमर को, हम लोग को वार्म अप करना है या फिर इग्नोर करना है? ना वार्म अप करना, ना इग्नोर करना. जैसे मैंने राजू को बोला, भाई तुम कर लो, बेस्ट ऑफ लक, और सोशल मीडिया पे बने रहो. आज नहीं 6 महीने के बाद आओगे. तो काइंड ऑफ वार्म अप वाला प्रोसेस में चला जाएगा ना, कि ऑटोमेटिकली एक्टिवली टाइम नहीं देना हम लोग को, बट वो लिस्ट में धीरे धीरे मेल भेजते रहो, कभी ना कभी आएगा. आई वुड से इनको पार्क रखो. मतलब ठीक है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लिस्ट. मेरे लिए वार्म वो होता है जो खरीदना चाहता है और उसके पास क्वेश्चंस है, डाउट है, और उसको वो डाउट सॉल्व किया तो वो खरीद तो ले. उनको तो हॉट में रख सकते हैं ना, फिर हम लोग उसको हॉट कैटेगरी में डाल देंगे. मेरे लिए हॉट कोई नहीं रहता, क्योंकि अगर तुम हॉट हो तो तुम खरीद चुके हो. तुम हॉट रह के डिसीजन क्यों नहीं लोगे? हॉट पता है कौन होता है? हॉट सिर्फ वो लोग होते हैं जो ऑफर देखते हैं और 15 मिनट तक वो हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, और फिर वो Q&A में डिसीजन लेके खरीद लेते हैं. जैसे या ही नहीं आप खरीदते, हाँ, डिसीजन ले लेते हैं. हॉट वाला खरीदेगा, हॉट वाला क्यों नहीं खरीदेगा? नहीं खरीदेगा अगर वो प्रोडक्ट उसके लिए नहीं हो या फिर तो पैसा वो नहीं है हॉट उसके होगा ही नहीं. पास. वैसे मनीष जी, हम लोग इसको आगे बढ़ाने से पहले लोगों को बता देते हैं हॉट कोल्ड अचानक से क्यों आ रहा है, बोलेगा अरे ये क्या ठीक है. बात हो गया हॉट हाँ. कोल्ड. हाँ. सो बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट of this lead is, look at it as a temperament. 0 degrees Celsius is absolutely cold, ice cold, and 100 degrees is somebody who's hot. Okay, so anybody who's over 30 degrees is warm. तो अब इसको visually imagine करो एक इंसान को. Paycheck to profit के लिए people who don't understand English are cold audience, because they'll not understand my mode of communication, my language of communication. People who are already financially free, super millionaires are probably not the right audience for me, because they won't resonate with the kind of content that I'm creating, because a lot of what I am already saying is already in their mindset. So they are cold. People who don't understand the seriousness of wanting to get financially literate are cold, according to me. Okay, so these are under 30 degrees Celsius. I will not even want to look at them. And ये हर इंडस्ट्री में होता है. हर इंडस्ट्री के हर ब्रांड के पास कोल्ड, वार्म एंड हॉट ऑडियंस होता है. ठीक है. वार्म ऑडियंसेस फॉर अगेन पेचेक टू प्रॉफिट के लिए, पीपल हु वांट टू गेट information about law of attraction, money blocks, money mindset, financial literacy. They want to invest but they don't know where to invest, how to invest. They don't understand how to choose the right investment product for themselves, so on and so forth. These are warm audience. People who know they have a problem, people who know that they want to do something about the problem but they don't know where to go. सो ये वार्म ऑडियंस है. फिर इनको आप नर्चर करते रहो, वो आपका कंटेंट देखते रहेंगे. they'll understand that you are consistent with your content, they'll understand that you have knowledge, and they start becoming hot, warmer. If somebody already knows about you and they've entered your webinar, they're already hot audience. यस. If they हाँ, बताइए. हाँ, मतलब मैं अपने पहले जब वर्कशॉप करता था तो उसमें लोगों को बताता था ये एग्जांपल लेकर कि हिंदी में कहावत है, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना है. तो करेक्ट. वेबिनार पे भी हम लोग को जब वो हॉट बन जा रहा है तब हाँ. हथौड़ा मारना है, यानी अपना पिच मारना है. हाँ. तब ज्यादा बिकेगा. मतलब रैंडमली किसी को भी लाके पिच नहीं कर देना है, पहले उसको करेक्ट. हॉट बनाना है फिर उसको पिच करना है. करेक्ट. तो आपको वेबिनार का एक सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, फोकस ही ये है, वेबिनार का सबसे बड़ा पर्पस ही ये है कि लोगों को इतना इंफॉर्मेशन दो, इतना पर्सपेक्टिव दो कि वो खुद समझ जाए कि एक नीड है जो उनके अंदर की नीड उनसे ज्यादा अच्छे से आप समझते हो, ताकि वो आपको ट्रस्ट कर पाए. वो नीड को बड़ा करो, उस नीड को एम्पलीफाई करो, और फिर वो डिसीजन लेने के लिए उनको एक ऑप्शन दो. यस. सो मेरे हिसाब से जब तक कोई भी हाँ या ना के पॉइंट पे नहीं आ जाता तब तक वो वार्म ही है, क्योंकि हॉट लीड्स बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं. द ओनली रीजन व्हाई अ हॉट लीड डज नॉट कन्वर्ट इज बिकॉज यू फेल टू कन्विंस देम. You fail to convince them because you don't answer all their questions, you don't solve all of their doubts, you don't give them enough perspective.
they don't trust you enough to make that decision with you. That is the only reason why a hot lead will not buy from you. यस, बेसिकली उनको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हॉट लीड आपका एक सूटकेस में पैसा लेके घूम रहा है अलग अलग वेबिनार में, तो कौन सा नहीं, वेबिनार कन्वर्ट कर लेता है? मैं बोलूंगा एक हॉट लीड ऐसा इंसान है जो ये अपना वॉलेट लेकर आया था, वो अपना ऐसा क्रेडिट कार्ड बाहर निकाल चुका है और आपको दिखा रहा है, देखो मेरा क्रेडिट कार्ड रेडी है, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, आंसर दैट क्वेश्चन एंड आई विल स्वाइप दैट कार्ड फॉर यू। वो कौन सी जगह से, वो किस पॉइंट पे खड़ा है कि वो आपको कार्ड नहीं दे पा रहा है, वो आपको समझना जरूरी है। वो हॉट है। जो वॉलेट लेकर आया है, जो बैठा हुआ है, वो अभी तक वॉर्म है। जिसने वॉलेट नहीं खोला ना, वो वॉर्म है। ठीक है, somebody opens their wallet and takes the card out, they are hot. They are just ठीक है, thinking, अब ये एक आंसर दे दो और मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली ये समझ में आ रहा है मुझे कि तीनों तरह का ऑडियंस आपका वेबिनार अटेंड करेगा, उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकते, कोल्ड भी कर लेगा, हॉट भी कर रहा है, वार्म भी कर रहा है, बट आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा हॉट लोग करे या वार्म लोग करे। हाँ, हाँ, ये बात आपने बराबर कही। What is in your control is nurturing your list, nurturing your audience, nurturing your community, and trying to make sure that maximum nurtured audience enters your webinar room. यस, इसी के लिए हम लोग अभी पहला वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, प्री वेबिनार वाला, कि Correct. उसको पहले से नीड समझो, पता करो और उस तरह का लोग और लाओ अपने वेबिनार पे। Exactly. ठीक है, तो हम लोग 2 कॉल किए थे पोस्ट वेबिनार में, मतलब जो उसको फीडबैक के लिए कि सेल्स क्यों नहीं किया, वो लोग बाई क्यों नहीं किया। तो पहला कॉल तो आप डायरेक्ट किए थे, उसमें वो बात करना नहीं चाह रहा था शायद, वो बोला, और दूसरा दूसरा था, वो बोला था कि बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे, वो बताना नहीं चाह रहा था। तो मान लीजिए इसी तरह का और कैसा कैसा कॉल हो सकता है जो आपको याद हो, आपके एक्सपीरियंस में आया हो, जहां से हम लोग फीडबैक ले सके कि अच्छा, और टेंजिबल फीडबैक मिले, लोग बाई क्यों नहीं करना चाह रहा है। यहाँ पर है ना, पता है क्या होगा, ये गेज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर कोई इंसान 90 मिनट्स आपके साथ बैठकर फिर भी डिसीजन नहीं ले रहा है ना, तो वो दो ही तरह का ऑडियंस है। एक है जिसको डिसीजन लेना ही नहीं था, क्योंकि एक बात समझो, कन्वर्जन रेशियो 15% है, मतलब 85% लोग नहीं खरीदने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप फोकस वो 85 पे मत करो। when you are post webinar, when you are calling, understand that most people are not going to buy, because if they could have bought, they would have bought your। यहां पर आप समझ लो एक पॉन्ड में मछली पकड़ने जा रहे हो आप। तो when you put that line, whatever it is called, उसमें मछली का आपका वो बेट पकड़ने का चांस उतना ही कम है। यू विल हैव टू कॉल, दे विल हैव टू बी अवेलेबल, दे विल हैव टू बी कंफर्टेबल। एक तो बहुत लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, या बहुत लोग ऐसे प्रेशर में आ जाते हैं, अरे यार अभी इसने फोन कर लिया, अब तो ये और सेल्स करेगा, अब तो ये और पिच करेगा, हाँ, वो तो सब तो पहले हम लोग बात ही डिफेंसिव नहीं में, किए। हाँ तो डिफेंसिव में चले जाए। यस। अब वो समझना है, वो कंज्यूमर का काम करने का तरीका है। तो बेसिकली ये पूरा सेल्स वाला पार्ट में आ जा रहा है। फिर सेकंड वाला, हम लोग फीडबैक कॉल ले रहे, बट इसी के साथ साथ सेल्स स्किल्स भी होना चाहिए कि क्या फीडबैक निकलवाए, कैसे, करेक्ट। किस तरह का और फीडबैक जितना चाहिए। ज्यादा करोगे, हर हर नीश का अलग होगा। और 100 में से जैसे कि आप बताए 85 लोग नहीं है हमारे ऑडियंस, तो हम लोग को लगभग जितना भी लोग बैठा है अटेंडेंस में, चाहे 30 हो चाहे 40 हो, सबका सबको कॉल करो, और कहीं से भी कुछ भी एक एक चीज भी आपको पकड़ा जाता है तो आप उसको इम्प्रूव करो, जो लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसको इम्प्रूव करते रहिए, कुछ ऐसा ही है ना? डेफिनेटली 10% कॉल में आपको कुछ ना कुछ फीडबैक तो मिलेगा कि सर आपने जो कॉन्सेप्ट समझाना है, ये तो मेरे सर के ऊपर चला गया। अरे ऐसा कैसा सर के ऊपर चला गया, ऐसा मैं क्या बताया जो आपको नहीं समझ में आया, तो जरा बताओ मुझे, तो मैं उसको सर ट्वीक करूं। फिर कोई बोलेगा सर यस, आपका लैंग्वेज है ना मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल लगा, तो ठीक है, लैंग्वेज को सुधार सकते हो। यस। और जैसे कि मेरे साथ हुआ था बहुत पहले, जो मैंने बताया था इसको, कि पहले मैंने 3 आवर्स का वर्कशॉप या एक 7 डेज वाला क्लास होता था, तो उसमें क्या होता था कि उसमें मैं लोगों को बहुत ज्यादा सिखा देता था पूरा का पूरा। हाँ, तो वो हाँ। भी मुझे फीडबैक के बाद पता चला, वो स्टार्टिंग में फीडबैक नहीं, कम से कम 150-200 कॉल करने के बाद एक जन से पता चला, कॉमन रियलाइजेशन हुआ कि सब पूरा तारीफ अच्छा कर रहा है, सब कि बहुत अच्छा चल रहा है आपका सेशन, लेकिन मैं आप इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो मैं लाइटली लेता था, हाँ ठीक है कर लो इम्प्लीमेंट। फिर मैं उसको फोर्स करता था नेक्स्ट लेवल इम्प्लीमेंट कर लो, लेकिन वो बोला पहला तो इम्प्लीमेंट कर ले। फिर मुझे समझ में आने लग गया कि मैं तो उसको इम्प्लीमेंट करवा ही दे रहा हूँ पहले ही,
तो फिर वो आगे का क्यों खरीदेगा? तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि, करेक्ट। बट ये भी कॉल से ही पता चलता है। ये जनरली होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छा वेबिनार स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे हो तो यू विल नो दैट यू आर ओनली सपोज टू increase their doubts, increase their, you just supposed to make them realize that बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप वेबिनार पे कोई सॉल्यूशन नहीं देते, आप वेबिनार में सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सपैंड करते हो। यस, मतलब आप उनको साबित कर रहे हो कि जो आप वेबिनार का आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्यों उनके लिए जरूरतमंद है। करेक्ट। जैसे आप, जब मैंने कॉल किया तो राजू कैसे बता रहे थे कि उनको समझ में आया कि इतना सारा कुछ होता है जो उनको पता ही नहीं था। उनको इतना हाँ भी समझ में आया कि मनी ब्लॉक्स हैं, लेकिन वो कौन सा है क्या है अभी उन्होंने ढंग से रजिस्टर भी नहीं किया, बट हाँ एटलीस्ट उनका वो पर्सपेक्टिव बढ़ गया, राइट। उनको समझ में आया कि अभी ये सब नया कुछ है जो सीखना बाकी है। ठीक है। तो ये कब तक कॉल करें? मान लीजिए बहुत बार होगा कि 50 कॉल किया, 100 कॉल किया, फिर भी एक टेंजिबल आंसर नहीं मिलता है बहुत बार कि एग्जैक्टली क्या फिक्स करे। तो फिर उसको कैसे हैंडल करे, या फिर मिलता ही मिलता है? अरे आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो रेजिलियंस तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। जब तक सक्सेस नहीं मिलता तब तक करते रहो। हम्म, क्योंकि उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन चाहिए क्यों? हाँ, मतलब जैसे कि वेबिनार कर रहा है वो, एक होता है कि नहीं मैं कॉल क्यों करूं, मैं तो थक जाता हूँ कॉल कर करके, मैं डायरेक्ट वेबिनार में ही फीडबैक ले लेता हूँ। एक्सक्यूजेस है, थक जाता हूँ कॉल कर करके नहीं। क्लियरली मान लो कि आपको कॉल करना पसंद नहीं है, या आपको वो नेगेटिव फीडबैक लेना पसंद नहीं है, इसके लिए आप नहीं कर रहे हो। ये सब छोड़ो, भी क्या और बोलूं। अगर सबका सब मान लीजिए 100 में से 100 कॉल किए, 100 में से अगर 70 लोग पूरा बोल रहा है कि मैम आपका बहुत अच्छा था, ये सर आपका वेबिनार बहुत अच्छा लगा, हम्म। तो फिर डीपर प्रोबिंग क्वेश्चन और पूछना है उससे हाँ, कि अगर अच्छा अच्छा लगा होगा तो तो फिर क्यों क्या नहीं दिक्कत खरीद है। रहे हो भाई। तो हम्म। बताएगा सर आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया मुझे, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि ठीक है आप बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो इन्फॉर्मेशन कम दो। फिर वो बोलेगा सर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आप उसको उसके हिसाब से चेक करो कि आप वाकई में बहुत महंगा बेच रहे हो क्या। फिर हम्म। अगर आपको और कोई बोलेगा कि आप, मेरे को आपका कंटेंट समझ में नहीं आया, तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है आपको अपने कंटेंट को और थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो यस। फीडबैक से ही तो आप समझोगे। ऐसा हो ही यस। नहीं सकता कि आप 100 लोगों से बात करो और आपको कोई भी ऐसा फीडबैक ना मिले कि आपको सब इंसान बोल देगा अरे सब एकदम परफेक्ट है, लेकिन आपको शायद पैसा नहीं खरीद, अब तक खरीदना नहीं है आज। नहीं होता, प्रैक्टिकल बात करो। यस, क्योंकि वो पहले तो वो ये कि आपका वेबिनार का फीडबैक देगा, हम्म। वेबिनार अच्छा है कि नहीं। वेबिनार अगर अच्छा है तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए फीडबैक लोगे कि ऑफर अच्छा लगा कि नहीं लगा। करेक्ट। अच्छा लगा तो मतलब लोग यहाँ पे भी रुकते हैं, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से लोग आते हैं तो लोग यहाँ रुक जाते हैं कि हम लोग उसको बोल चुके थे कि सेल्स का माइंडसेट से कॉल मत करो। तो लोग पूछता ही नहीं है कि सेल के लिए नहीं पूछता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कॉल जब करते हैं लोग उनको पूछते नहीं है, वो बोले कि सेल के माइंडसेट के लिए फोन मत करो, इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑफर मत करो। तो जैसे आप क्या किए थे बिराजू को, तीन चार हाँ। बार अलग अलग तरीके से पूछ रहे थे, फिर हाँ। क्यों नहीं लिया, ये नहीं लिया। बट लोग वहां पे रुक जाते एक बार कि ठीक है क्यों नहीं लिया, मैं सोचकर बताऊंगा। तो फिर लोग सोचते कि अब मैं इसके आगे क्या ही पूछ लूं अब जब लोग बोल दिया सोचकर बताएंगे तो अब उसको क्यों परेशान करें, अब रखो फोन। बट आप Correct. उसके बाद भी पूरे डिटेल्स में पूछे कि क्या बताओगे, क्यों बताओगे। लास्ट में पता चला कि चलो ये अच्छा नहीं है, या फिर वो नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। रेडी नहीं। कितनी बार क्या होता है ना, लोग भी बात करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। हम्म, गॉट इट। तो इसका ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, इसका ऑल्टरनेटिव यही कि प्रैक्टिस करिए और अपने प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, हाँ। और सेल्स स्किल भी बढ़ाना होगा, मतलब इनडायरेक्टली कि इस तरह से बात करो कि उसको पता ही नहीं चले कि सेल हो रहा है। क्योंकि यहाँ नहीं पे तो आप सेल कोर्स नहीं कर रहे हो मेरे हिसाब से, यहाँ कोर्स को सेल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप उस चीज को सेल कर रहे हो कि आपको फीडबैक मिल जाए। अगर फीडबैक मिल गया तो आप अपना सेल करके आ चुके हो। करेक्ट। हाँ, आप भी कुछ शायद कह रहे थे ना। सेल करो, हक से सेल करो। अगर आपको आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, पुश मत हम्म, करो। तो जिस वो दिन जिस दिन आप उस पोजीशन में आए ना, अरे खरीद लो सर, अरे आपके लिए बहुत अच्छा होगा सर, वो नहीं करना है। हम्म, गॉट इट। तो अगर ऑडियंस ये देख रहे हो अभी तक तो आप लोग रिवाइंड करके भी देख सकते हो, जहाँ पे राजू से बात किया गया था थोड़ा देर पहले, वहाँ चैप्टर्स में भी आपको टाइमलाइंस मिल जाएगा। तो वहां पे मनीष जी हमको 5-6 बार पुश कर रहे थे कि खरीदो खरीदो, लेकिन वो मतलब वो नहीं करे, फोर्स नहीं कर रहे थे कि खरीदना है। मतलब वो पूछ रहे थे तो ऐसा वे में पूछ रहे थे कि
नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा था, लग नहीं रहा था कि वो पीछे पड़ रहा है, अरे भाई खरीद लो ना, क्यों खरीद नहीं रहे हो। वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और मैं उसको हैंडल, मैं बता रहा था कि नहीं मुझे नहीं खरीदना, मैं बताऊंगा। मैंने 3-4 बार बोला कि मैं सोच कर बताऊंगा। तो इतने में तो आदमी का हालत खराब हो जाता है सामने वाले का, कि नहीं। जो नॉर्मल कोच रहता है कि अरे हम पीछे कैसे पड़ रहे, लग रहा है पीछे पड़ रहा है, बट इस कॉन्वर्सेशन में लगेगा नहीं कि वो पीछे पड़ रहा है। नहीं तो अगर मैं तो अपॉर्चुनिटी खोज ही रहता कि कब मनीष जी को बोलूं कि पीछे क्यों पड़े हुए आप, मेरे फोन रखो। मैं बट अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं। ट्राई कर लो वो, क्योंकि हम्म। देखो थिक स्किन होना पड़ेगा। और अगर एक बार कोई बोल भी देना यार पीछे क्यों पड़ रहे हुए हो, मतलब देखो बॉस, मेरे एक सेल से मेरे लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपके लाइफ में फर्क पड़ेगा। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं पीछे पड़ रहा हूँ तो सॉरी, मेरे को 10 मिनट पहले फोन रख लेना चाहिए था। तो यहाँ पे एंड हो गया बात हम्म, वापस से। हम्म, और वो आप अपना रेपुटेशन बचा के एंड करके आए, मतलब। हम्म। और जो मैं कि तो आपको जेन्युइन बोल, बात है। क्योंकि मैं जेन्यूनली मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरा नाम के लिए एक सेल बढ़े। हम्म। अगर नाम के लिए मैंने सेल बढ़ा लिया ना तो फिर आप सर के ऊपर और चढ़ोगे, फिर बोलोगे कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, समझ में नहीं आया, ये हो गया, आपको लगेगा पैसा लेके फंस गए। नहीं चाहिए भाई ऐसा। फिर वो बायर्स रिमोर्स हो जाएगा, नहीं सेलर्स रिमोर्स हो जाएगा। सेलोस रिमोर्स होता है, वो नहीं चाहिए। बैठे रहो भाई, तुम मत खरीदो। यस, गॉट इट। बट ठीक। बेचो तो हक से बेचो, क्योंकि आपको हम्म। पता है कि हाँ, मैंने राजू को क्यों पुश किया, क्योंकि उसने क्लियरली बताया उसका मनी माइंडसेट टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं था। मैंने उसको हम्म। क्यों एक और बार पुश किया, क्योंकि उसने बोला कि उसको मनी ब्लॉक समझ में आया, उसने बोला कि उसको इंटरेस्ट है कि वो खुद सीखेगा। तो भाई क्यों तू यूट्यूब पे जा रहा है, क्यों तू ऐसा रैंडम जगहों से सीख रहा है, क्यों तेरे को हम्म। ट्रायल एंड एरर करना है। आपको ऐसा ट्रेनर पता है कि वो चीज नहीं काम करता, तभी तो मैंने कोर्स लॉन्च किया है। काम करता है वो बहुत अच्छे से, तो फिर कोर्स की जरूरत ही नहीं होता है ना। करेक्ट। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन है तो आप हक से बेचोगे। हम्म। तो ये सब भी इशू हो जाता है, मतलब लोगों को अपने प्रोडक्ट पे डाउट रहता है, या फिर अलग अलग बहाने ही दिख बहुत रहा है मुझे चीजें हैं, हर जगह। सेल्स पे प्रैक्टिस नहीं है, ओवर थिंक करते हैं, उनको लगता है कि वो पुश कर रहे हैं। मेरे को तो एक भी बार नहीं लगा मैंने राजू को पुश किया, लेकिन हो सकता है हमारे ऑडियंस में से जिनको सेल्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं, उनको लगेगा अरे यार तो पुश कर रहा है, हो सकता है। हाँ। तो मतलब आपको, मतलब मुझे नहीं लग रहा था पुश कर रहा है, क्योंकि उसमें मतलब वो बहुत डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट बात है। मतलब मैं देख पा रहा था कि वहां पे नहीं हो रहा था पुश, वहां पे वो हो रहा था कि आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, आंसर कर रहे थे। बट पुश करना मुझे वो लगता है, जब मेयर रियल स्टेट वाला जहाँ पे हम बताए थे कि हाँ, एग्जांपल हम गए थे, वो 4 घंटे तक हमको बिठा लिया था और हम आर्ग्यू कर रहे थे। वो भी आपकी तरह वो डिबेट कर रहा था। बट वो हर पॉइंट के बाद वो कर रहा था कि नहीं, फोर्स करना काइंड ऑफ हो गया। वो डिबेट नहीं कर रहा था, फोर्स कर रहा था कि नहीं लीजिए लीजिए, आप तो 4 घंटा लगा दिए, अब तो पहले बोलना चाहिए था, ये है वो है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मतलब बहुत टाइम तक बात करने के बाद में भी ऑफर ना दूं, और अगर ऑफर भी दूं तो फिर आपने ना बोल दिया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़े। हम्म। ठीक है, मतलब एट द एंड आउटकम ये मुझे एक और लर्निंग मिल रहा है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, अगर कुछ बोल भी दिया तो वो क्या सोच रहा है इग्नोर करो, धीरे धीरे हाँ, इंप्रूव करते जाओ। क्योंकि देखो एक सिंपल बात समझो, आप किस भाव से जा रहे हो। My हम्म। genuine interest is people attend my course, go through my program. If they don't like my program and tell me, Manish, I actually went through all the videos, I did all my assignments. These are what my goals look like. These are what my aspirations look like. These are the money blocks that I've identified. This is how I understand that I can manifest more money using law of attraction. And yet I did not get value. हो ही नहीं सकता ना, यस। हो ही एंड नहीं सकता। यस एंड सबसे बड़ी बात है कि ये अभी हम लोग ये सब कॉल का बात तब करते हैं जब वेबिनार लोग नया नया कर रहे हैं, वो सेल्स का हाँ हाँ परसेंटेज फिक्स करना चाह रहे हैं। हाँ। और जब फिक्स हो चुका होगा, तो फिर आप तो ये कॉल करने जा नहीं रहे। फिर एक एक जन को जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला था आपसे पर्सनल बात करने का, वो बाद में नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूँ जिसको जब भी कनेक्ट करना है ना वो कर भी लेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आप आज भी वो सेल्स का डेस्पिरेशन नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप वो डेस्पिरेशन नहीं छोड़ पाओगे। मुझे पता है ऐसे लोग जिनकी कम्युनिटी में हजारों लोग हैं, लेकिन आज तक वो सामने वाले को गिल्टी फील कराते हैं अगर वो वेबिनार पे खरीदते नहीं है तो। क्यों नहीं खरीद रहे हो, हम्म। तुमको क्या तुम्हारे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको तुम्हारे फैमिली की जरूरत नहीं है, तुमको अपने फैमिली को खुश नहीं देखना है। अरे क्यों बोल रहे हो भाई ऐसा, कोई तुमको ऐसा हम्म। बोल दे तो। वही। हाँ, वो वो मुझे सेम चीज मुझे याद आ रहा था जब रियल एस्टेट के लिए हम गए थे। तो फिर वाइफ के नाम पे, देखिए भाभी जी का ये सपना है वो सपना है।
बोले अरे वो हम पूरा कर लेंगे, तुमको क्या करना है अभी इससे। तो ये होता है, मतलब वो दिख जाएगा आपको डिफरेंशिएट करते करते, मतलब धीरे धीरे कोई भी कर रहा है तो उसको खुद ब खुद 4 कॉल 5 कॉल के मैं बाद डिफरेंस आने मैं लगता है। लास्ट मिनट तक राजू के बारे में ही सोच रहा था। एक सेल से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजू को बहुत फर्क पड़ेगा एक ट्रांसफॉर्मेशन से। यस, क्योंकि अगर मैं अपना केस का भी बात करता हूँ, तो जो मैं कोर्सेज बेच रहा हूँ वेबिनार में, कि अपने कोर्स को कैसे लॉन्च करें, बिजनेस कैसे लॉन्च करें, हम्म। तो आज नहीं तो कल वो लोग मेरे पास आ गए या कहीं और से सीख रहा है जो भी कर रहा है। बट दुख मुझे तब लगता है कि इसके पास स्किल था, बट कुछ भी कारण से वो मेरे को ज्वाइन नहीं किया। तो उसका क्या नुकसान। क्या तगड़ा स्किल था कि हाँ 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये स्किल है, सब कुछ रेडी है, बट मुझे लग रहा है कि मैं उसको फिक्स कर सकता था, बट वो मेरे पास आई नहीं, तो मैं क्या करूँ। ये वो वाला बात हो गया कि कुछ प्रॉब्लम है, मेरा हाथ टूटा है, हम डॉक्टर के पास गए, लेकिन हम उसको बोल रहे कि नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, तो नहीं, डॉक्टर हो सकता है नहीं ट्रीट करे। नहीं, मेरे पास नहीं आया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कर सकता है अगर वो उस इंडस्ट्री में आ जाए तो। या आना भी चाहता है लेकिन डिसीजन नहीं लेना चाहता है, वो सबसे इरिटेटिंग पार्ट हो जाता है कस्टमर्स का। दे हम्म आइडेंटिफाई द नीड, they identify that the path that you are recommending is the right path, but yet they don't want to take that decision because their resistance is just too strong. हम्म गॉट इट। तो बेसिकली एक ये भी हो रहा है लर्निंग मेरे लिए, कि कभी कभी उस कस्टमर का आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको करना ही नहीं चाहिए किसी भी कस्टमर का। यस। और सबसे पहली बात, भाई साहब, जब तक आपको उस बंदे ने या उस बंदी ने पैसा नहीं दिया तब तक वो कस्टमर का हुआ लीड है। बिल्कुल। मेरे लिए एक सिंपल चीज है, आप अगर मेरा वेबिनार अटेंड कर लोगे ना, आपको लगेगा मैं वेबिनार नहीं खेल रहा हूँ, मैं सेल्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन गेम खेल रहा हूँ। हम्म मैं हर जगह पे बोलता हूँ, यहाँ पे आपको चाहिए तो आप एग्जिट ले सकते हो, यहाँ पे आपको एग्जिट ले सकते हो, इन लोगों को मेरा कोर्स नहीं, प्रोग्राम नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मुझे जेन्युइनली चाहिए कि मैं एक ऐसा मेंबरशिप बनाऊं, मैं ऐसा कम्युनिटी बनाऊं जिससे से ज्यादा लोगों को फायदा हो। हम्म मेरा तो सेल होने ही वाला है, मेरी ग्रोथ तो नक्की है। मेरे ग्रोथ हाँ। साथ अगर आपका भी फायदा हो तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। यस। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाकर मुझे मजा नहीं आएगा। यस। तो कोचेस के लिए भी यहाँ पे वही लर्निंग है जो हम थोड़ा देर पहले बोले थे, कि आपका ग्रोथ तो कैसे ना कैसे करके आप कर ही लोगे। इसको कॉल करे चाहे नहीं करे, वो हो सकता है 6 महीना बाद, 1 साल बाद। आप तो ऑलरेडी अपने कम्युनिटी बना चुके होंगे, अपना वेबिनार को इम्प्रूव कर चुके होंगे, कुछ ना कुछ कर चुके होंगे अपने लिए। लेकिन आप लोगों को कॉल कर रहे हो तो लोगों का भलाई के लिए, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। करेक्ट। तो जिस तरह से आपको समझ में आता है, जिस पॉइंट से आप रेजोनेट कर पाते कर लो, बट कॉल करो। यप। है ना। ठीक है मनीष जी, तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल सेशन रहेगा। और पास्ट में यही कमेंट भी आया था किसी व्यूअर का, उसी के रिक्वेस्ट पे हम लोग बना रहे थे, हम्म। तो उनको हम लोग टैग कर देंगे वहां पे। और बाकी और कुछ क्लोजिंग थॉट्स इसमें आपका? नहीं, आई थिंक सारा हमें चीज क्या क्लोजिंग होता था। है ना, हम जब वो स्ट्रक्चर बनाते हैं तब समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली जब बात करना चालू करेंगे, क्योंकि हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो ये कॉन्वर्जेशन में ही बाहर निकलता है। हाँ। वो स्ट्रक्चर को देख के समझ में नहीं आता। सो आई एम रियली 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 हैप्पी दैट वी डिड दिस एपिसोड। आई एम श्योर इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड यू वुड हैव गॉटन अ लॉट ऑफ वैल्यू। प्लीज, I request you to click a picture of your notes and share them on social media so that more and more people can get to know about this podcast, and more people can get value out of the information that we are putting out in the internet, because otherwise this information is just going to get stored on one of the servers of YouTube, which nobody is going to see, and that's not the purpose of this episode. So please, get more and more people to watch these episodes, share these uh, links with the people who you think will derive value out of it, share your notes and give us your feedback. Tell us what can we do better, tell us what other angles of your business can we help you in, and yeah, that's about it. यस, एंड इन फ्यूचर आई थिंक वी कैन आल्सो डू सम एपिसोड्स ऑन सेल्स, क्योंकि सेल्स का हम लोग का हमेशा से रहा है ना कि लोगों को सेल्स में इश्यू आता है। तो वो सब के बारे में फ्यूचर में कभी और डिस्कस कर लेंगे डिटेल्स में। Ask us your questions about sales and I'll be more than happy to talk about it. That's one of my favorite subjects anyway. यस, सो अगला कुछ एपिसोड्स विल डू ऑन दैट एज वेल। सो ठीक है मनीष जी, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। Yeah. यस। Thank you so much. Thank you so much for watching till this point. Pankaj, would you like to give any closing thoughts or should I just end the episode? नहीं, आई आई थिंक वही है कि कॉल करो। आई विल जस्ट टेल वन थिंग, और तो कुछ बोल के फायदा नहीं, पूरा एपिसोड ही उसके अराउंड चला है, और उसके बाद भी लोग आके बोलेगा कि नहीं कॉल क्यों करे नहीं करे।
मत करो यार, तब इस बार बिजनेस हम बोलेंगे सब्सक्राइब नहीं करके नहीं नहीं, चले मत जाओ करो फिर। मत करो कॉल, बिजनेस बंद करो, जाओ जाके कहीं पे जॉब करो, ठीक है। हाँ फिर क्या बोले उसको फिर। मेरा फायदा थोड़ी हो रहा है कि ये कॉल करे नहीं करे, उसी का फायदा हो रहा है। आप करे करे नहीं करे मत नहीं करे, इट्स जॉब करो। एंटायरली हिज चॉइस। इनफैक्ट बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं स्टार्टिंग में वेबिनार करो, 1-to-1 कॉल करो, जितना 1-to-1 कॉल करो। इनफैक्ट लोग तो बोलते हैं वेबिनार ही मत करो स्टार्टिंग में, बोलते हैं 1-to-1 कॉल करो, ऐसा भी कहते हैं स्टार्टिंग में। हाँ और वो उनका पर्पस तो यही रहता है ना 1-to-1 कॉल का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करोगे ज्यादा फीडबैक मिलेगा। तो वेबिनार करेक्ट, में आप बल्क में फीडबैक ले रहे हो। आई टेल तो यू। हाँ। हाँ सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। हाँ तो हम लोग वही बोल रहे थे कि बल्क में फीडबैक ले रहे हो, तो उसी को थोड़ा और मिक्स कर रहे हैं हम लोग कि 1-to-1 फीडबैक भी ले लो, तो जितना ज्यादा फीडबैक हर जगह से लोगे उतना अच्छा है। I'll tell you, I would do a lot of one-to-ones if people were serious about booking a one-to-one meeting and actually showing up on one-to-one meeting. The हम्म। biggest reason why I don't do one-to-ones is because people don't show up, and that is a real waste of time, and that literally boils my blood. Okay, so give me a second, I'll note down that as well. सेल्स एंड the 1-to-1 सेल्स VSL, ये भी एक टॉपिक हो गया हमारा। VSL फनल के बारे में भी हम लोग एक बार लोगों को आइडिया दे सकते हैं। Sure. ठीक है, तो you can go ahead and if you want you can close it, no problem. Thank you so much for watching this episode, guys. Please give us your feedback. Let us know what can we do better. Let us know if there are any questions that were left unanswered. Please interact with us. Follow us on social media. And thank you so much. I'll see you in the next episode. Take care. Keep smiling. See you Thank soon. you, bye bye.